Archana from Hyderabad. Okay. So somebody from South, somebody from East, koi North se honge. Surat, Madhu ma'am from Surat. Smita ma'am, yes, welcome to the webinar. Karnataka, okay. Chandigarh. So we have people from all over India joining in, right? Most of the places, it's like wintry, right? Especially Chandigarh, north side में सब जगह बहुत ठंड पड़ रही है. और ठंड में क्या होता है? What have we gathered here for? Some क्या प्रॉब्लम है? लुधियाना एक और ठंड की जगह. So what have we gathered here for this evening? हम लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं? Anybody? Daya Khilare from Pune. Yes. So we have somebody from Maharashtra as well. So that's great. So ये webinar आखिर किस लिए join हुए आप? Any problems, any pains, aches, neurology problem healing. Archana Nahata ma'am says that. Let's quickly write in the chat box along with our name and numbers. Pain. The word pain. The 4-letter word pain. Pain to physical भी हो सकता है, mental भी हो सकता है, and can be both together. Yes or no? So, but we can still see people smiling in spite of pain. So that's such a great thing कि आप हंस रहे हैं in spite of the pain. So आप कर क्या रहे हैं pain के लिए? What are you trying to do for your pain? I'm sure you've tried lot of therapies, allopathy, homeopathy, and so many other therapies that goes around the world. आपने सब कुछ try कर लिया होगा. अब आप खोज रहे हैं कि कुछ ऐसी चिकित्सा जो आपको permanently pain से छुट्टी दिलाए. Yes or no? Give me a thumbs up if you agree with me. Mala ma'am, Raghu sir, Kamala ma'am, do you agree with me? परमानेंट पेन से छुटकारा किसको चाहिए? सभी को चाहिए, आई सपोज, या नहीं चाहिए? Okay, I can't see any of the hands going up. Waiting for your answer. Okay. Yes, so everybody needs relief, of course. पेन किसी को अच्छा नहीं लगता है. तो अब आते हैं कि कितने लोग अपने ऊपर काम करने को तैयार हैं. अभी तक जो आप कर रहे थे वो दूसरे लोग कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक पिल खाना है. तो ये तो काम नहीं हुआ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. Is everybody ready for that? Are you ready to take charge of your health? Oh yes, I can see a couple of hands going up. Everybody seems to be ready for taking charge of their neuromuscular health. So if you give me 2 minutes of your screen time, I would like to share the details of Ashtang Chikitsa. Do I have your permission? Vijay ma'am, TR Nagar sir, Nisha ma'am, please give me a thumbs up if I have your permission. Thank you so much. Mala ma'am, Prashant sir. Okay, so just give me 2 minutes and I will share the screen. Okay, now can you see the screen? Yes, clear. Ashtang Chikitsa online therapy for neuromusculoskeletal problems. किसी को न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स है. तो अंडर द हैट ऑफ अष्टांग चिकित्सा वी कवर both neurodegeneration and the musculoskeletal degeneration of problems. Namaskar, I welcome you all to the Ashtang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Lavisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing
neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be facing from, but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. Ashtanga Chikitsa can also be used as a preventive method so that your internal organs are functioning at their optimum levels. Now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare कुंभक योगी. तो कई लोगों ने तो कुंभक के बारे में सुना होगा, and maybe some have not heard about कुंभक. So kumbhak is used as a general word in yoga, but here Swami Raj Vibhuji has done years of research to take people out of chronic disorders by the help of kumbhak therapy or the breath hold therapy. So Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtanga Chikitsa to address the structural issues of a human being. So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way, that's our purpose at Avisa Healing and Fitness. It's a profound way of addressing the aspects of a human body. So who is this webinar for? Strange question, right? कि ये webinar आखिर है किसके लिए? सभी के लिए तो नहीं है. For people who are tired of temporary treatments and are looking for some natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtanga Chikitsa, freedom from pain and medicine. So Swamiji will talk about the Ashta Sharir or the 8 Sharira. What exactly are the 8 Sharira? Shrishti Sharir, Garbha Sharir, Dosha Sharir, Marma Sharir, Pramana Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti, and the Vikriti Sharir. Now, when we are considering the neuromuscular health issues, we primarily consider the Prakriti and the Vikriti Sharir. So, Prakriti, yani ki regenerative factor of our body, Vikriti, yani ki degenerative factors of the body. तो होता क्या है, जो आपको पेन आज महसूस हो रही है, it has not started from today. It started around 20-25 years back. But the imbalances which happens, that is the degeneration and the regeneration, whatever imbalances are there, so that is the reason for the pain surfacing or showing up in your body. So Ashtanga Chikitsa can heal. Of course, the list goes on and on. हर समय हम सुनते हैं कुछ नई नई बीमारियां, but the most common ones have been listed here. That is the knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine-related issues, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, or the nerve issue. So let's hear from Swami Raj Vibhuji what exactly he has to say about Ashtanga Chikitsa and how you can come out of your current health issues. Thank you so much for listening to me patiently, and I'm sure everybody is anxiously waiting to know more about Ashtanga Chikitsa and how we can heal ourselves out of our own natural methods.
So I'll just explain to you how we are going to proceed in the webinar. After this, we will be playing the recording of Swami Rajvibhu ji. उसमें आप समझेंगे आप अपने करंट प्रॉब्लम से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं, हाउ द बॉडी फंक्शंस, और कैसे प्रॉब्लम्स शुरू होता है. Next, we will be inviting somebody live who is the current participant of Ashtang Chikitsa. So he or she will be sharing their journey of Ashtang Chikitsa so that you get a deeper insight of the online therapeutic program. Of course, after that, we will be sharing the program details. And last but not the least, Swami Rajvibhu ji himself will be joining us live to answer all the questions possible within this limited time. So फट से लिख डालिए आपके problems जो भी आपको परेशान कर रहा है, along with your name and contact number. Till then, goodbye, namaste, and happy listening to Swami Rajvibhu ji's video. Over to Anil ji. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में. knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबॉडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? No. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी, लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. द डॉक्टर विल स्टिल से देयर इज अ लोकलाइज्ड प्रॉब्लम एट द नी. वो करेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, एंड ही वुड ट्राई टू सी द प्रॉब्लम देयर इटसेल्फ. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. बट डू यू नो व्हाई इन्फ्लेमेशन हैपन इन योर बॉडी? Why inflammation? Inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों हो जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%.
95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या होगा, तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, लोअर बैक पेन एंड योर नी पेन कैन हैपन. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी एग्जाम्पल नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtang Chikitsa. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें सर. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, in yoga कलाचार, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation.
नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. एंड देर इज अनदर एस्पेक्ट कॉल्ड विकृति. लॉट ऑफ सेल्स विच हैज एज्ड, दे डाई. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, सर्टेन एज, दे वेयर ऑफ. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, प्लीज थिंक अबाउट इट, बिकॉज योर बॉडी इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं. आप लेना नहीं चाहते हो. योर बॉडी डजंट वांट टू. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर. इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, isn't it? What do? You do long exhalation. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी. I'm just talking about humanity. I'm just saying it in that way. हमने क्या किया? वातावरण का खराब कर दिया. डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सहेल मोर? इट वांट्स टू इनहेल लेस एंड एक्सहेल मोर. सो इज कंस्ट्रक्शन हैपनिंग मोर और डिस्ट्रक्शन हैपनिंग मोर? लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, नो कंस्ट्रक्शन. सो आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है, it doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to, a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie,
there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो. See a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना. Skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. At muscles, at joints. आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. So disalignment, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. 3 basic disalignment है. Nabhi, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your nabhi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा ना. आजकल diabetes बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor and the disalignment of the
thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें, जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यस और नो? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है, वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go to the third part, Pramana. Now one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest, अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, pramana sharira, prakriti, vikriti, sankhya, pramana. चौथे पे आ गए हम, pramana. Pramana means density. इसका मतलब होता है density, गुरुत्व, भार. Density, इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, योर फैट मसल, वो योर फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के tissues हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी organs हैं ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट?
But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड. कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस एंड ट्राई टू पुश योर लेफ्ट पाम वेरी हार्ड. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. हाउ डू यू क्रिएट दिस स्ट्रेंथ ऑफ पुशिंग? ये जो शक्ति आप क्रिएट कर रहे हैं, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ. यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ बिहाइंड. करके देखिए दोबारा. अगेन डू इट अगेन. सी, पुश इट हार्ड. यू होल्ड योर ब्रेथ. सांस रोकते हैं आप, बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ, वेयर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, so how do you lift weight? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally. योर हार्ट रेट विल इंक्रीज. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम, पसीना आ जाएगा. वेयर डिड द ट्रिगर गो? इनसाइड. सो बाय ब्रेथ होल्ड यू कैन क्रिएट एन इंटरनल ट्रिगर. कैन यू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स योर हार्ट, टुवर्ड्स योर लिवर, टुवर्ड्स योर किडनी, टुवर्ड्स योर थायराइड, टुवर्ड्स द अदर ऑर्गन एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. हाउ यू मेड वन हैंड मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? बिकॉज यू वर्क विद दैट हैंड मोर, इजंट इट? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. एंड हाउ डिड यू वर्क? ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन, ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन. दैट हैंड बिकेम स्ट्रॉन्ग. सो इफ यू डू ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन इनसाइड, दैट ऑर्गन विल बिकम स्ट्रॉन्ग. दिस इज द ओनली वे. देयर इज नो अदर वे. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you. For youngsters also, छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. ऑर्गन आपकी आंतों के बीच में, लंग्स, ऑर्गन्स एंड द एक्सटर्नल बॉडी इज कनेक्टेड. ये सब जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो जंक्शन पॉइंट है, दिस जंक्शन पॉइंट ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज मर्मा.
if this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये जंक्शन पॉइंट ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक मूवमेंट ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called murmurs. So murmur needs a constant rejuvenation. इनको कॉन्स्टेंटली एक तरीके से मूवमेंट देना पड़ता है. टू कीप इट फाइन, वी नीड टू एक्चुअली make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving another example. If your murmurs are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का मूवमेंट का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना. If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना. क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्म, बेटर सेल्यूलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेल्यूलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट, कैंसर हैपेंस बिकॉज ऑफ अ कैंसरस एनवायरमेंट. और उसके लिए इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, देन देयर शुड बी कांस्टेंट रिजुवेनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम मर्म अष्टांग चिकित्सा में, there is a part in Ashtanga Chikitsa, there is a part called as Anganyasa and Marma Vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. तो फंक्शन, देयर आर थ्री थिंग्स विच आर अटैच्ड टू फंक्शन. तीन चीजें हैं फंक्शन के साथ में जुड़ी: मटेरियल, एनर्जी एंड मूवमेंट. फंक्शन मींस थ्री थिंग्स: मटेरियल, एनर्जी एंड डायनामिज्म. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. दिस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of this word called Vata, Pitta, Kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, Kapha, Pitta, Vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. सो व्हाट इज योर जॉइंट प्रॉब्लम? व्हाट इज इट कॉल्ड एज? वात दोष. राइट? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? व्हाट इज वात? मूवमेंट. वात ऑल्सो क्रिएट्स पेन. सो मूवमेंट, हाउ डू यू कंट्रोल मूवमेंट? इफ यू वांट टू मूव योर हैंड, हाउ डू यू कंट्रोल द मूवमेंट? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैनर. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. यस और नो? यू कंट्रोल योर मूवमेंट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ यू कैन नॉट कंट्रोल योर मूवमेंट. तो वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of Vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा?
There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's really temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice कुंभक. कोई और चारा है नहीं. So dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure. Rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There was a marathon. There is a marathon runner. She's a lady, a lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, उसका marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पलकती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता. So these are examples of people who have done kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality.
So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking about now, I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now being busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I'm telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा feel होगा? How will you feel in your body and mind? You will feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा.
So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान ही कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment from through. 84 अलग अलग फोर्सेस में आप काम करते हैं. Your organ function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as अंगन्यास. The second one is called as hatha vinyasa. The third one is called as kumbhak therapy. So in 9 weeks you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. कोई magic दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. हाँ? So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. I'm sure we've got some insight on how we can change our lives, and it is entirely on to us if we really have the will to change our lives. Now let's get further in the webinar, and I would like to invite Dr. Maushami ma'am, who has, I think, already joined us, to share her experience of Ashtanga Chikitsa.
Moushumi ma'am, are you able to hear me? Moushumi Hello. Mahapatra ma'am. Hello. Hello. Yes, thank you. Yes, ma'am. Thank you so much for joining us in the webinar, ma'am. Thank you, Rachna ma'am. Thank you. Namaste. Yeah. पहले मैं अपना पहले पूज्य स्वामी जी को नमस्ते करती हूँ और मेरे जितने भाई बहन ये प्रोग्राम देख रहे हैं सबको प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं यहीं पे हूँ मेरा जर्नी विद अष्टांग चिकित्सा के बारे में बताने के लिए। बट बिफोर आई स्टार्टेड माय जर्नी इन अष्टांग चिकित्सा, I let you know I am a teacher by profession. I am teaching the kindergarten students and I was having back pain more than 25 years. I had 2 spine surgery in 2017 and 2021 and I have 15 screw and 2 plates in my spine. तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं मैं कितना पेन में थी। And after the second spine surgery, I was diagnosed with fibromyalgia 10 months back. मैं जब फाइब्रोमेलेजिया मुझे जब रूट आउट हुआ तभी मैं डॉक्टर के पास गई एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फाइब्रोमेलेजिया एक ऐसा डिजीज है जो नर्व डैमेज या वीक नर्व की वजह से होता है। फाइब्रोमेलेजिया से आपका हेड टू टो तक पेन होता है और अनबेरेबल होता है। आप जितना भी पेन किलर खा लीजिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो व्हेन आई वाज डायग्नोस्ड विद फाइब्रोमेलेजिया आई वेंट टू माय डॉक्टर। फिर मैंने बोला ये क्या हो गया, तो डॉक्टर ने बोले दिस इज कॉल्ड फाइब्रोमेलेजिया मैडम, दिस इज द नर्व रिलेटेड डिजीज, तो इसका कुछ क्योर नहीं है। अगर आपका मसल्स में अगर प्रॉब्लम होता तो हम आपको एक्सरसाइज बताते, कुछ खाने पीने का चीज के बारे में बताते। सिंस इट इज द डिजीज ऑफ द नर्व, इसका कुछ इलाज नहीं है, हम सिर्फ आपको नर्व रिलैक्सेशन मेडिसिन दे सकते हैं। तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, उसी दिन मैं बहुत अपसेट थी एंड आई वाज लिटरली इन टेयर। तो इवनिंग को मैंने फेसबुक ऐसे ब्राउज कर रही थी, देन आई सॉ ए स्मॉल एड कि इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ योर न्यूरोमस्कुलर डिजीज प्लीज ज्वाइन इन दिस व्हाट्सएप ग्रुप। सो मैंने वो लिंक लेके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया एंड माय क्लास वाज स्टार्टेड इन September 9th को स्टार्ट हुआ था एंड आई वाज इन 96th बैच। तो जब मेरा क्लास स्टार्ट हुआ फॉर द वेरी फर्स्ट क्लास, हमारे मेंटर गुप्ता जी और पूजा मैम थे। तो देन आई सॉ कि एक ही ग्रुप में 30 लोग हैं, 30 लोगों का एक बैच है। क्योंकि मैंने कभी अष्टांग चिकित्सा के बारे में मेरे लाइफ में नहीं सुना था, मैंने बोला कि एक तो पहले एक ग्रुप में 30 लोग के विद डिफरेंट एज ग्रुप विद डिफरेंट डिजीज, किसी को माइग्रेन था, किसी का बीपी है, किसी का बैक पेन है, किसी का शुगर पेन है, किसी का नी पेन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। जब फर्स्ट क्लास में जब हमको बताया गया कि पहले स्वामी जी का वीडियो दिखाया गया कि व्हाट इज दैट अष्टांग चिकित्सा, जैसे आपका अभी ना आपने स्वामी जी का भी सुने होंगे अभी, तो दैट इज द होल्डिंग ऑफ योर ब्रेथ, मेनली इट इज द होल्डिंग ऑफ योर ब्रेथ। फिर भी मैंने जब गुप्ता जी से पूछा कि पूजा मैम से पूछा कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, कैन इट इज विल क्योर्ड, तो पूजा ने बोले मैडम डोंट वरी, इट इज कंट्रोल्ड एंड इट विल बी क्योर्ड, इट इज माय गारंटी। फिर जब कोई पूछता था मैडम हमारे ये माइग्रेन का प्रॉब्लम है, इज इट क्योर्ड, तो हर क्वेश्चन का आंसर हाँ में देते थे। मैं तो हैरान हो जाती, मैंने कहा ये है क्या चीज के हर क्वेश्चन का आंसर उनके पास हाँ में बोलते थे। एनी हाउ मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद एक मतलब उसी टाइम पे, मैं मुंबई से हूँ, उसी टाइम पे यहाँ पे हमारा नवरात्र का सेलिब्रेशन आया। तो नवरात्र में मुंबई में गरबा डांस एंड डांडिया डांस बहुत फेमस है। तो उसी टाइम पे हमारा स्कूल में एक गरबा डांस का प्रोग्राम था। तो मैं तो अष्टांग का तो जो भी ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज कर रही थी, फिर भी मेरा अपने ऊपर इतना बिलीव नहीं था कि मैं क्योर हो पाऊंगी या मेरा डिजीज मतलब कंट्रोल में हो पाएगा।
Then I thought कि this is the best time to dance गरबा and to prove myself कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ. तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, I danced more than 1 hour. 1 घंटे से ऊपर मैंने डांस किया. बट मेरा दिमाग में तो था कि फाइब्रोमियाल्जिया का पेन आएगा, बैक पेन होगा, क्योंकि इतने साल से मैंने झेल रही थी. बट टू माय सरप्राइज, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे ना मुझे बैक पेन हुआ, ना फाइब्रोमियाल्जिया की जो अटैक मैं सुन रही थी वो नहीं था. तो मैंने बड़ा खुश होके ना, मैंने मेंटर जो पूजा मैम को इतना बड़ा मैसेज दिया, मैम ऐसा ऐसा है. जैसे दिया, नेक्स्ट टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा पेन शुरू हो गया, मतलब बैक पेन शुरू हो गया. देन आई सेड कि इट्स ओके, अभी तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा तो 25 साल का बीमारी है, अभी एक दिन में तो नहीं जाएगा. फिर धीरे धीरे मैं करने लगी. सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर में जैसे हमारा चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को आता है, जब मैंने गरबा डांस करके देखा कि नहीं, आई कैन डांस, क्योंकि 25 साल पहले मैं ये सारा कुछ नहीं कर पाती थी, ना नीचे बैठ पाती थी, ना डांस, तो हपिंग जंपिंग तो छोड़ ही दीजिए. फिर जब नवंबर 14 को मैंने स्कूल में बोला कि आई विल डांस फॉर द किड्स, तो सबने हंसने लगे, बोले देख मौसमी, तेरा ये प्रॉब्लम है, बाद में तुझे तो ऐसा नहीं बोलना है कि भाई तेरे प्रॉब्लम के मतलब डांस की वजह से ऐसा ऐसा हो जाएगा कुछ. मैंने कहा डोंट वरी. पहले मेरा विश्वास नहीं था, अभी विश्वास है. यस, आई कैन डांस. फिर 14 नवंबर को बच्चों के लिए मैंने डांस किया, खूब जंप किया. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी, या अष्टांग चिकित्सा के बारे में मुझे पता नहीं था, वो जो मेरा जो क्लैरिफाई हुआ, जो ब्रीदिंग, होल्डिंग, इनहेल, एक्सेल जो किया, वो सब कुछ डांसिंग, हपिंग फपिंग में कर पाई. मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम जब भी कुछ बीमार होते हैं ना, डॉक्टर पास जाते हैं ना, डॉक्टर सिर्फ ना आउटर बॉडी के लिए बोलते हैं कि आपको फीवर हुआ, ये मेडिसिन खा लो. लेकिन हमारा जो इनर बॉडी जो है, टिश्यू है, जो इनर बॉडी, माइंड, सोल है, इसके बारे में कभी कोई भी नहीं बताया था, जो कि स्वामी जी एकदम क्लियर कट बताते हैं. और हमारा जो मेंटर्स जो है, उनके बारे में मैं जितना अच्छा बोलूं उतना कम होगा. क्योंकि आप सोचिए, 30 लोग डिफरेंट कैटेगरी का पेन में है, डिफरेंट एज ग्रुप का है, डिफरेंट क्वेश्चन से. मैंने कभी उन लोगों का कभी इरिटेट होते हुए नहीं देखा. जब भी हम कुछ पूछते थे, बड़ा पेशेंसली वो लोग बोलते थे. एंड सबसे अच्छा मुझे इनका ये लगा कि 1-to-1 इंटरेक्शन होता है. जैसे हम कुछ करते हैं ना, ब्रीदिंग होल्ड करो, हम होल्ड करके पहले नहीं कर पाते थे, तो वो लोग 1-to-1 देखते थे. नहीं मैडम, आपका यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, नहीं सर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे थोड़ा और होना चाहिए. तो ये चीज मुझे इतना अच्छा लगा, 1-to-1 इंटरेक्शन इतना वो लोग जब ध्यान देते हैं. तो मैं तो सोचती हूँ कि अगर 25 साल पहले अगर ये अष्टांग चिकित्सा कुछ होता, तभी तो नहीं था, तो शायद मैं इतना सफर नहीं करती मेरे लाइफ में. तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, प्लीज लिसन टू योर बॉडी, प्लीज लिसन टू योर बॉडी, माइंड एंड सोल. एंड अष्टांग इज द ओनली क्रिया, मतलब कि जो ब्रीदिंग होल्डिंग जो करते हैं, उससे ना आप लोगों का ना इनर का बहुत स्ट्रेंथ होता है. जैसे ही मैंने 25 साल से पहले जैसे ही मैं नहीं फील करती थी, अभी आई कैन फील कि मेरा अंदर से ना कुछ तो स्ट्रेंथ हो गया है. ठीक है, अभी आई एम ऑल्सो इन मेडिकेशन, ऐसा नहीं बोल रही कि फाइब्रोमियाल्जिया का नॉन मेडिकेशन लेती हूँ, बट 99% आई एम क्योर्ड. मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि भाई ये अगर पहले से ही हम लोगों के मतलब कि इसके बारे में हम लोग को पता होता, तो शायद हम लोग बहुत अच्छे से वो लोग सब करते. अभी जैसे वेरियस मीडिया, सोशल मीडिया अवेलेबल होता है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फिर यूट्यूब है, फिर गूगल मीट है, डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म में डिफरेंट टाइप का ये सब स्वामी जी का वो सारा टॉक चलता है, ये लोग सिखाते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि यू प्लीज लिसन टू योर बॉडी एंड वी कैन कंट्रोल आवर inner self, what goes inside. So that's all. That is my journey of the Ashtanga Chikitsa. My happiest thanks to Swami Ji and to all the mentors. Thank you. Thank you so much, Moushumi ma'am, for joining us. Now I would request Anil ji to please share the program detail.
Yeah, sure. Just give me a few seconds. Rachna ji, are you able to see my screen? Yes. Okay. All right. So let's get to understand the details of the program, which a lot of you are waiting for. काफी time हो गया है. So we'll go through this very fast. Now, the first thing is, it's a guided program conducted online by trained कुंभक mentors. ये guided program है जो कुंभक mentors हैं, उनके द्वारा ये conduct किया जाता है online Zoom app के ऊपर. That is the first thing. Like you must have known by now, Swami ji already discussed in the video. There are 3 modules in the program: module 1, 2, and 3, or you can call them Vata, Pitta, and Kapha module. Duration of each module is 3 weeks or 21 days. So total program duration becomes 21 into 3, 63 days. That is the total duration. Now, if you can see, it's written 9 plus 1 week. Why 1 week extra? You'll get to know in a short while. There will be 2 live classes every week, out of which 1 will be the learning or the main class and 1 will be the mentoring or the practice class. What are the next steps? You pay the program fee, and we have a very special webinar pricing for the people who have stayed back. And then after that, you have to fill the participant onboarding form. And then you start your classes, starting with module 1. Ultimately, you will be completing all 3 modules, but everybody will be starting from module 1. Total classes again, module 1 has 6 classes, out of which 3 are learning and 3 mentoring classes. Same is for module 2 and module 3. So 6 into 3 makes it 18 classes. But total classes, if you see in white text written here, it's 18 plus 1 customization class. What is this customization class? We'll talk about it in detail shortly. So total engagement becomes 10 weeks instead of the 9 weeks. 1 week for the customization class. Batch 110. There's a printing mistake. It's batch 111 starting on 26th December, Monday at 7 p.m. Mentor classes or the practice classes are on Thursdays for module 1 and on Fridays for module 2, and Saturdays it is for module 3. We'll share all these details on WhatsApp in the WhatsApp group as well as in chat here. What is the class experience like? As you must have known by now, these are live sessions conducted on the Zoom app. The mentors watch all the participants so that they can give you feedback if you're doing the kriyas correctly or not. And you get written instructions in English and Hindi as well. And then session recordings are available. So even if you miss any class, you don't have to worry about it. You'll get the recording of the class through a course dashboard. There'll be a lot of extra things that you'll be getting. There'll be mental practices and you'll get a unique diet perspective. Mind you, this is not a diet plan. This is a diet perspective. You'll get a video from Swamiji in which he'll be talking about how to use food so that the food supports your body, not harm it. Then there'll be simple detox processes and a lot of knowledge will be shared during the program. Now, these are yearly expenses that many of you may already be making on the disease, on the health issues that you are suffering from. Why I'm sharing this with all of you is this, because we as human beings, we tend to compare things, even if it's a therapy or some clothes, whatever. So just if you want to make a comparison, because soon I'll be announcing the fee so that you can compare how this fees is so affordable to the expenses that you already may be doing on your disease, just to maintain that disease. I've written here doctor fees 6,000 to 12,000. These are yearly figures.
So depending on the city that you live in, these could be the expenses that you may already be doing. If you're into physiotherapy, another 12,000 to 30,000 every year you may be spending, then medicine may be costing another 15,000 to 30,000. So if you total all of these, 33,000 to 72,000, you could already be spending just to maintain the disease, not cure it, just to maintain and manage it. And if you're into allopathy, we all know about the side effects. So we will not talk about it here, right? Now, I'd also like to talk about some points which will discuss who this therapy is not for. Why I'm saying this therapy maybe not for everybody is because of these reasons. This therapy is not for people who are looking for a magic pill and want to results tomorrow only. Why we say this is because since childhood we've been, popping a pill. हम दवाई ले लेते हैं. As soon as we get a cough, cold, we don't allow the body to repair itself. We take a pill, a magic pill, and most of the times it's allopathy medicine. So we are used to it. So it's become a habit. So because it's become a habit, so whichever treatment we get into, somehow this habit takes over us and we start expecting to get a pill, some medicines, because we are so used to all those medicines. So this is nothing like that. This therapy is nothing like that. There'll be no medicine pills or anything given to you. And please don't expect results just tomorrow or in a day or two, because the problem that you are into you didn't get into this overnight. So the problem will also not get, will not get solved overnight also. So we have to understand it. And we just want to impress upon you that please be aware of these facts. Then this is not for who are not ready to work in their body, because you'll be spending about 80 to 90 minutes initially every day to do the kriyas correctly. Initially, since the kriyas will be new to you, so you'll take longer. As you keep on practicing the kriyas, you'll get used to them, you'll develop muscle memory, and then you'll start reducing the time that it will take you to do all the kriyas. But we want to just let everybody know that this will require some investment of time on your part, right? And this is not for those who are impatient. We very well understand that when we are in pain or when we have a health issue, normally the patience, reduces. We understand that, but just to make it sure, please be patient. That is requested for all who join the program. And this is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. Why I brought up this point is because when we advertise on Facebook, which all of you must have seen and registered for this webinar, we advertise the webinar is free because it's an introduction to Kumbhak therapy or Ashtanga Chikitsa. The 9 weeks program is not free. So please do not confuse it with the free webinar. So that's the reason that we have to bring it up front. And this is not for people who are looking for just some tips. See, if chronic ailments, if the serious health condition could be, solved through tips only, then there are thousands and thousands of videos on YouTube. You could just, watch a video and treat yourself. But that's not the case. So please do not treat this webinar as to pick up some tips, because holistically the body needs to be treated and it has to be the kriyas, particularly I'm talking about Ashtanga Chikitsa. You have to start from one point and go to the end point. For this is true for all the treatments. So please do not treat it as a free treatment, and please do not treat this webinar to pick up some tips. Now, let's talk about what all you get in the program. This may be unbelievable for some of you. The first point is Pran Shakti diagnosis for root cause determination. See, most of the treatments in the market, they do not know or cannot find the root cause of the problem. They just work on the symptoms and they treat the symptoms only. But unless you know the root cause, like if you remember in the video, Swamiji talked about the 84 forces
through which the body organs function. So which function has, become weak, due to which you landed into your current situation, that Swamiji is able to find out through the Pran Shakti diagnosis. What is this diagnosis? Let me just give you an explanation of this. First of all, this is a non-medical diagnosis which is conducted online. Okay, this diagnosis is conducted online. Many people ask us, how is it possible? Because we are used to getting MRIs, CT scans, this scan, X-rays. We are so used to it, but those are not actually diagnoses. They are just observations. There's a difference here. The root cause determination, we arrive at the root cause of the problem. जड़ क्या है बीमारी की, उस पर अराइव करते हैं, उसको पता करते हैं. लेकिन जो डायग्नोसिस जो हम मार्केट में देखते हैं, डायग्नोस्टिक बोलते हैं उनको, बट दे आर नॉट डायग्नोस्टिक. They'll just say, they'll observe, आपका डिस्क में इतना गैप है, आप हमें ये दिखाई दे रहा है, बट क्यों हुआ वो ये नहीं बता पाते हैं. So we have to understand the difference. So this alone could be worth the total fee of the program. That's the Pran Shakti diagnosis. This is the key to the permanent solution. आगे बढ़ते हैं. The second thing is, there'll be weekly one main class of 60 to 90 minutes, live classes I'm talking about. Why 60 to 90? 60 minutes is the actual duration of the class. And then we take up questions from participants. They'll be asking their doubts, questions. So it may extend to 90 minutes. So that's why we write it 60 to 90. Then same is true for the duration of the practice class. So there'll be 2 weekly classes. Online course access for 6 months. What is this online course access? As I've already told you, these classes, all the live classes are recorded and made available to you. This access to all these recordings will remain with you for 6 months. After the 10 weeks when the program gets over, you'll still have 6 months to access all these recordings, which is enough time to learn all the kriyas by heart and do them daily. Then videos of all kriyas done in the class. How this is different from the class recording? The class recording is of the whole duration of the class, 90 minutes. But these videos of separate kriyas, like one kriya may take 2 minutes, some kriya may take just 10 minutes. So you don't have to watch the whole recording to know how a kriya is done. You just watch the video of that particular kriya and that's it. You save a lot of time this way. Then you get written instructions in English and Hindi. These can be downloaded from your course dashboard, printed out and used to refer to do your kriyas on a daily basis. Some people like to watch and learn. Some people like to read and learn. Whichever is your style, both are available. Then 7th, private WhatsApp group to ask doubts, questions 6 days a week. This is where this will be your home for the next 10 weeks. As soon as you enroll in the program, you will be added to this class WhatsApp group. This is the place where you will be asking all your doubts. Like 2 days of the week, you will be live with us. The remaining 5 days when you're practicing alone, and if you have a doubt that time, so this is the place you will be asking. Our mentors are added in the class groups, so they'll be answering you, clearing all your doubts, and guiding you step by step. Okay. Individual participant progress tracking or feedback. Every day you'll be filling up a form, a short form, in which you'll be mentioning as to what is going well and what is not going well. So that way we can track at the end of the program as to how much progress you have made. Then therapy customization for each participant in the 10th week. This is very important. If you haven't paid attention till now, please do it now. If you remember the first point, I talked about Pran Shakti diagnosis. Now, like Mosmi ma'am shared with you that there'll be people with different diseases, different problems, or related to neuromusculoskeletal issues. Okay. So the 9 weeks that you get, that is actually the time when your body is prepared to receive this customization that I'll be talking about. What happens in these 9 weeks? Let's get to know. There are 3 primary things that happen. First, the Vata, Pitta and Kapha of the body is balanced. Second,
there are three basic alignments. Swamiji also talked about in the video: the thighs, navel, and the chest. These are structural alignments. A lot of disease, a lot of problems occur because of the misalignment or the disalignment of all these factors: thighs, navel, and the chest. And the third main thing that happens in these 9 weeks is you are taught controlled exhalation. And this is the reason you are advised not to do Kapalbhati if you are doing it, because in Kapalbhati, that is forced exhalation. And here, what we are trying to teach is controlled exhalation. This therapy is based on controlled exhalation. Okay. So now, when the body is prepared in these 9 weeks, then the therapy or the kriyas of each participant will be customized, fine-tuned as per the diagnosis, as per the Prana Shakti diagnosis, the point number 1, which I talked about just a short while before. Okay. So based on this, kriyas will be customized for it will be different for different participants based on the diagnosis, the Prana Shakti diagnosis. That's a very important point. Now, there will be extended support for 30 days after the program is over. After the 10 weeks, you'll still be associated with us, you'll still be connected with us, and you'll still be able to ask a doubt question, because many a times some people, some participants, they are not able to attend the classes. So you need not worry about it, because many people are in serious conditions also, so they are not able to do the kriyas on a daily basis. So even if you miss, you still have 30 days. So this support is available to all of you. Now, let's get to know the fee, which a lot of you may be waiting for. So the most interesting part of the webinar. People stay back just to see how much the fee we are going to announce. This is 14,500, includes everything. The 10 points I talked about, the customization, the diagnosis, 18 plus 1, 19 classes, the support in WhatsApp group, the course access for 6 months, everything. But as I promised that there'll be a special webinar pricing for people who have stayed back. What is it? Let's get to know. Just 6,500 for all the 10 points, all the features of the program, all inclusive, nothing extra to pay. And this, since it's a very highly discounted offer, so this is valid till 24 December, or which is a Saturday, till 12:30 p.m. So if you want to enroll at this price, you can do that. Aage badhte hain. Let's get to know how to enroll. Step 1, you pay the program fee, the discounted fee. And then step 2, you post the payment receipt in the WhatsApp group, so that our team members, they can note it and confirm your payment. After that, you'll get a participant onboarding form on your personal chat, which you'll be filling up. And then in step 4, you join the WhatsApp group, which I talked about, where you'll get the support and where you'll be able to ask doubts, questions. Step 5, you start attending classes to learn Ashtanga Chikitsa. Simple 5-step process. Payment details we'll share in the chat as well as in WhatsApp group. Now, I'll just like to stop here for some time and talk about the super team, which will be at your service. This super, why we call it super team? Actually, we do not call it super team ourselves. Our participants call us a super team, because the kind of support they get and the kind of doubts and the hand holding and the guidance that they get through our team. Now, we have Rachna Shrimal Bothra. She is the program director and the host of this webinar. Then we have Shalini Bhagwat. She is the class manager, takes care of all the batches, class timings and everything. We have Ashwini Kumar, he's the IT manager. Then we have mentors, Pooja, Ranjana, Sukesh, R.D. Gupta ji, Soni ji, Aruna ji, Neena Rai, Suruchi Goyal. We have a lot of mentors. So that every one of our participants can be supported, answered and guided properly. And Neha Upadhyay, she is the enrollment in charge. She'll be the person you'll be interacting the most before enrolling into the program. She'll be answering your questions, doubts regarding the enrollment, the fee and everything. Anil Chauhan, that's me. I'm the admin and the enrollment. I also look after the enrollments. I'll be the person who'll be answering all your questions in the WhatsApp group. Like after a short while, Swamiji will be here live to answer all your questions, but due to shortage of time, we may not be able to answer all the questions. So you need not worry. You please post your question in the WhatsApp group and I'll be answering all the questions tonight only. Okay.
And then we have Himanshu Reddy. He's the technical person. He's the person who takes care of the class recording, uploads, the app installation. If your video is not playing, he's the person who will be helping you out. He's the technical person. Then we have Anita ji, who's our personal support executive, and she'll be calling each and every participants. She calls about 20-25 people every day. So she'll be talking to you personally, and she'll be, getting to know if you were facing any problem in the class or with the login access. So we have a multi-tier support. We understand that this is an online program. So online program is a bit difficult for some people. So we have tried to take care of all the things that may, that people may face a problem with. And that's what all I wanted to talk about. And with this, I come to the end of my part. I'll hand over the presentation back to Rachna. Namaskar. Thank you so much, Anilji, for sharing the program details. Now we will be taking up the questions. I suppose Swami Raj Vibhuji has joined us. Namaste, yes. Swamiji. अब हम लोग एक एक करके questions लेंगे. We will try to take as many questions as possible in the limited time. Okay. Manjula Shastri writes about knee loss of cartilage. Knee pain due to loss of cartilage, I feel. It's a very common thing that is happening nowadays to many people. है ना, कार्टिलेज घिस गया. तो पहले क्यों नहीं घिसता था इतना? घिसता था पहले, इतना नहीं घिसता. Because your regeneration is not happening. Does cartilage form in human body? Yes, it forms in human body. बचपन से आप बड़े हुए हैं तो उस समय कार्टिलेज भी बने थे, लेकिन रीजनरेशन नहीं हो पा रहा. रीजनरेशन के लिए क्या चाहिए? आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए. ठीक है ना, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मतलब मेटाबॉलिज्म होता क्या है? अच्छा, आपको कुछ पहले ना आपको अपनी भाषा, अपने तरीके से चीजों को समझना चाहिए, है ना. ऐसा मेटाबॉलिज्म बोल दिया तो आपको कुछ आइडिया लगा लेते हैं ना. तो ऐसे आइडिया लगाने से काम नहीं चलता. अच्छा, एक बात बोलिए, एक बात सोचिए कि डायबिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है. डायबिटीज बहुत बढ़ रही है. 100 साल पहले किसी को डायबिटीज नहीं था. अच्छा, थायराइड का इश्यू बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना. 50 साल पहले किसी को थायराइड नहीं था. अच्छा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कैंसर, किडनी इश्यू बढ़ रहे हैं ना, सारे बढ़ रहे हैं. ये सभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. इवन ब्लड प्रेशर आपका एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? मतलब होता है आपके इंजन की क्षमता. आप जो खा रहे हैं उसको कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं. ठीक है, सिंपल टर्म्स में समझिए. जब आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए. अब मुझे एक बात बताइए, आपके इंजन की क्षमता, यानी आप जो अनाज खाते हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, उसको कितना इस्तेमाल कर, कितना यूज कर पा रहे, उसको यूज करने की क्षमता को मेटाबॉलिज्म कहते हैं. और वही यूज होगा तो आपके अंग बनेंगे ना, कार्टिलेज बनेंगे, बोन बनेगा, नर्वस सिस्टम बनेगा, मांसपेशियां बनेंगे. अब मुझे एक बात बताइए कि कौन सी दवाई आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक कर देती है? ऐसी कोई दवाई नहीं बनी. आपकी दवाई की वजह से ही आपका मेटाबॉलिज्म खराब हुआ है. क्योंकि जब आप इतने छोटे से थे, हॉस्पिटल में पैदा हुए, या आप या आपके बच्चे पैदा हुए होंगे, तो कितने सारे केमिकल उनके शरीर में डाला. इम्यूनाइजेशन किया ना, वैक्सीनेशन किया, इम्यूनाइजेशन किया उनका, कितनी सारी केमिकल डाले. तो केमिकल जब आप शरीर में डालते हैं, जो कि हमारा शरीर डिजाइन नहीं है इसके लिए, तो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म सबसे पहली चीज है, उसको नुकसान होता है. जब शरीर के अंदर कुछ भी खराब डालेंगे, है ना, पेट्रोल की गाड़ी में तो डीजल नहीं डालते. डाल लीजिए कभी कभी, क्या फर्क पड़ता है, डीजल थोड़ा सस्ता होता है ना, तो पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल लिया करो कभी कभी, पैसे बचाने के लिए. नहीं, ऐसा थोड़ी करेंगे.
ये तो बेवकूफी वाली बात है, मगर इस गाड़ी के अंदर तो कुछ भी डालते हो, ये बेवकूफी वाली बात नहीं है। कॉमन सेंस कहां गया हमारा? अगर आपकी ये दवाइयां आपके लिए बनी होती तो पेड़ पे लगने चाहिए थे ना इनको। वो दर्द की दवाई, वो मेटफॉर्मिन डायबिटीज के लिए, ग्लिबनक्लोमाइड खा लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई एक, हाँ है ना, थायराइड की दवाई, थायरक्सिन लटकनी चाहिए थी, तोड़ के खाते रहते दिन रात। तो आपका शरीर नहीं बना दवाइयों के लिए, मगर दवाई डालेंगे तो ये नुकसान, उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब हो जाएगा। और दवाई से जो खराब हुआ वो ठीक नहीं होगा, ये तो मान के चलिए, किसी दवाई से ठीक नहीं होगा, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो नॉन केमिकल हो, चाहे नेचुरल हो, आयुर्वेदिक हो, कुछ भी हो। दवाई से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा। नहीं तो दवाई खा के मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता, आप दौड़ जाते, सारा मैराथन वैराथन दौड़ लेते आप तो। नहीं होता ऐसा। ये सब ना आपको अपनी बुद्धि से समझना। तो मेटाबॉलिज्म ठीक करेंगे तभी रीजनरेशन अच्छा होगा। भाई रीजनरेशन यानी शरीर में नई चीजें बनना और पुरानी चीजों का खत्म होना, इसका इंबैलेंस ही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, रूमेटॉइड कहते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जी ठीक ही नहीं होगा, नहीं ठीक होगा फिर भी आप उन्हीं के पास में जाते हैं। क्या कहते हैं? ठीक नहीं होगा, फिर भी वहीं लाइन में वेट करते हो ना दिखाने के लिए डॉक्टर को। वो तो साफ कह रहा है नहीं ठीक होगा, फिर भी वहीं जा रहे हो। ऑपरेशन करा दो, ऑपरेशन कराने का मतलब घुटने रिप्लेस करा लो। घुटने रिप्लेस कराने का मतलब क्या है? आप जरा इस बात को समझिए, आप लोग सब समझदार लोग हैं। घुटने रिप्लेस कराने का मतलब क्या होता है कि आप वो घुटने ठीक नहीं कर सकते। हार्ट खराब हो जाए तो हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो, लिवर खराब हो जाए लिवर ट्रांसप्लांट करा लो, किडनी खराब हो जाए किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। यानी ठीक तो कुछ भी नहीं कर सकते। भाई ठीक नहीं कर सकते रवि तो ट्रांसप्लांट करा लो। लेकिन कौन ठीक कर सकता है? आपका शरीर कर सकता है। अगर इसका रीजनरेशन हम ठीक कर दें, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? रीजनरेशन डीजनरेशन का बैलेंस हो। एक और एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। अगर धुआं निकल रहा है किसी गाड़ी में से बहुत ज्यादा, उसके नजदीक से आप गुजर रहे हैं, तो सांस कम लेंगे ज्यादा लेंगे? कम लेंगे ना, कम लेंगे ना। पर मुझे एक बात बताइए, वहां तो धुआं निकल रहा है आपको दिख रहा है, मगर हर जगह तो एनवायरमेंट पोल्यूट हो गया, तो आप सांस कम ले रहे हैं ज्यादा ले रहे हैं? आप वैसे ही कम ले रहे हैं। तो आपके सांस कम लेने से क्षमता, सांस लेने की क्षमता कमजोर हो गई। अगर ये कमजोर होगी सांस लेने की क्षमता, तो मेटाबॉलिज्म आपका वीक हो जाएगा। तो ये क्षमता किसी चीज को, कि कोई फंक्शन करने की क्षमता को ही कुंभक कहते हैं। ठीक है ना? कुंभक किसे कहते हैं? कोई काम करने की क्षमता को कुंभक करते हैं। ये 3 लेवल पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। शारीरिक लेवल पे, शरीर हिलाते हैं कुछ भी करते हैं तो आप पीछे सांस रोक के करते हैं। ऐसे आप उंगली फंसाइए, उंगली फंसाओ, खींच लो, खींचो, खींचो, जोर लगाओ और रोक लो। सांस रोक रखी है आपने, खींच खींच के रोक लीजिए। पीछे देखिए, सांस रोक रखी है, सांस रोकी आपने, पुश कीजिए, धक्का दीजिए, पुश कीजिए, जोर लगाइए, रोक लीजिए, देखिए पीछे सांस रोक रखी है। शरीर से कोई भी काम करते हैं तो शरीर का कुंभक क्या है? सांस रोकना। ये शरीर का कुंभक है। आपको मालूम है, जब आप एक हॉरर मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी देखी होगी ना, मजा भी आता है देखने में। हॉरर मूवी देखने में मजा क्यों आता है मालूम है आपको? क्योंकि डर का जब एकदम से सडन सीन आती है ना, तो आपकी सांस रुक जाती है। और जो कमजोर लोग हैं ना, उनको हॉरर मूवी देखने में ज्यादा मजा आता है। कमजोर लोगों को ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो जब डरावना सीन आता है तो आपकी सांस रुकती है, आपके अंदर थोड़ी ताकत आती है। क्या कमाल की बात है, कभी सोचा नहीं होगा आपने इस तरीके से? जितने कमजोर लोग हैं ना, कमजोर दिल के लोग, वो ज्यादा हॉरर मूवी देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी सांस रोकती है और उनका मन थोड़ा मजबूत होता है। इस तरीके से हमारा मन काम करता है। क्या कमाल की बात है। तो सूक्ष्म तल पे देखेंगे, सूक्ष्म तल पे भी जो कुंभक होता है, किसी सडन चीज में बिल्कुल स्थिर हो जाना। कोई सडन कोई इंसिडेंस होता है, उसमें आपका शरीर भी स्थिर हो जाता है, मन भी स्थिर हो जाता है, तो सूक्ष्म लेवल पे कुंभक है। ऊर्जा के लेवल पे भी कुंभक है, और भी उससे कारण लेवल पे भी कुंभक होता है। कुंभक के बगैर ना जीवन हो सकता, ना ये खत्म हो सकता, ना जीवन के जितने नियम चल रहे हैं वो हो सकते हैं। तो अगर शरीर के लेवल पे देखेंगे तो आपका
हार्ट का एक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना, हृदय का एक स्ट्रेंथ होता है। इनहेलेशन जो है ना आपके शरीर में गर्मी बढ़ाता है, यानी मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। इनहेलेशन और होल्ड आपके शरीर में फ्लो बढ़ाता है, यानी कि हार्मोन का फ्लो हो रहा है, यानी कि ब्लड का फ्लो हो रहा है, यानी कि कोई भी आपके शरीर में जो फ्लो होता है, बिना फ्लो के तो चल नहीं सकता आपका शरीर। फिर इनहेलेशन, होल्ड और फिर एक्सहेलेशन करेंगे तो डिटॉक्स बनाता है आपके शरीर का। तो अब जरा देखिए, मैं आपको सिंपल सिंपल चीजें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये बहुत बड़ा साइंस है। अगर आप एक यूनिट का मतलब क्या, 5 सेकंड मान के चलिए, 1 यूनिट 5 सेकंड, तो 1 यूनिट का इनहेलेशन करो, 1 यूनिट का होल्ड करो, रोक लीजिए, 4 यूनिट का एक्सहेलेशन करेंगे तो आपका लिवर स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। 4 यूनिट का इनहेलेशन करेंगे, 2 यूनिट का होल्ड करेंगे, 1 यूनिट का एक्सहेलेशन करेंगे तो किडनी ठीक होना शुरू हो जाएगा, डिटॉक्स ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके शरीर की शक्तियां हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है, आपके शरीर की शक्ति का इस्तेमाल मेटाबॉलिज्म है। तो कौन बढ़ाएगा मेटाबॉलिज्म, आपका शरीर ही बढ़ा सकता है मेटाबॉलिज्म, और कोई नहीं बढ़ा सकता। वो कैसे बढ़ाएगा, कुंभक के जरिए ही बढ़ाएगा, चाहे आप जान के करें चाहे आप अनजाने में करें। अगर वो ठीक हुआ है तो कुंभक से ही ठीक हुआ है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो रीजनरेशन अगर आपके शरीर का बढ़ाना है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाना होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है तो कुंभक करना होगा, है ना। लिवर को ठीक करना होगा आपके शरीर में, आपके शरीर में किडनी का डिटॉक्स प्रोसेस ठीक करना होगा। रीजनरेशन और डीजेनरेशन दोनों का बैलेंस आ जाएगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा, आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस खत्म हो जाएगा। आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएंगे। मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा तो वाटर का फ्लो होगा तो इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएंगे। रीजनरेशन होगा तो आप कार्टिलेज रीजनरेट होंगे, आपके बोन कार्टिलेज ये सारी चीजें लगातार बनती खत्म होती रहती है। वो बनने का प्रक्रम आप स्ट्रांग कर दीजिए, आप देखेंगे अगर वो पूरी तरीके से नहीं भी बन पाया आपको आराम मिल जाए, आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उम्र के साथ भी इसका रीजनरेशन का स्ट्रेंथ जो है वो वीक होता है। कितना हम दोबारा बिल्डअप कर सकते हैं, क्वेश्चनेबल है, डिपेंड ऑन आप कितने कमिटेड हैं, डिपेंड एक और चीज पे करता है, आपकी उम्र कितनी है। लेकिन रीजनरेशन 100% हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि तकलीफ जब तक जिएंगे तकलीफ नहीं आएगी, ये हम इंश्योर रखें। तो ये जरूर कीजिए, कोई दवाई नहीं कर सकती है, ठीक है ना, कोई भी दवाई नहीं कर सकती है। अच्छा भोजन पचाने के लिए भी आपके शरीर की शक्ति चाहिए, है ना। तो अपने शरीर पे थोड़ा काम करें, बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत आराम मिल जाएगा, कभी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Rachna ma'am writes about slow metabolism, body pain and anxiety issues. ये तो अभी बताया ना, एंजाइटी क्यों होता है, एंजाइटी आपको कब होता है, घबराहट कब होती है आपको, आप अपने एक्सपीरियंस से समझिए। घबराहट कब होती है, जब कमजोर होते हैं तो ज्यादा घबराते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं ना। आप एक काम करके देखिए, एक दिन भोजन ना करें, शाम तक आते आते आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी। तो किसी चीज को, किसी भी शरीर के किसी भी ऑर्गन को अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अगर भोजन नहीं मिलेगा तो वो मांगेगा भोजन। तो एंजाइटी क्रिएट करना यानी एक्टिविटी तेज कर देना आपके शरीर में, ये प्रोटेक्शन है आपका। आपका शरीर एंजाइटी क्रिएट करके आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो एंजाइटी कहां से होती है, आपके शरीर में एक एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर 2 छोटे छोटे ग्लैंड है, ये ना किडनी के ऊपर है। तो जब भी आपके शरीर में कोई रिस्क आता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे मान के चलिए, घर में आमतौर पे एक फीमेल बॉस होती है ना, एक औरत बॉस होती है, लेकिन अगर उस घर पे कोई खराब सिचुएशन आ गई तो क्या है, मेल ओवरटेक करता है। फिर जैसे हमारे देश में आमतौर पे प्रधानमंत्री सारे काम करता है, मगर लड़ाई होगी तो कौन बॉस बन जाएगा, राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। जब रिस्क बढ़ेगा आपके शरीर में तो ये एक्टिव हो जाएगा, इसे कहते हैं एड्रिनल ओवर एक्टिविटी। ये एक्टिव होगा तो क्या करेगा, बचाने के लिए 2 चीज करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, और दूसरा शरीर में शुगर बढ़ा देगा, ब्लड में, शरीर में नहीं ब्लड में शुगर बढ़ाएगा।
क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि वो शुगर का इस्तेमाल करके आप या तो लड़ें उस सिचुएशन से या तो भागें। इमरजेंसी मैनेजमेंट है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, शुगर बढ़ाएगा, ताकि आप उससे या तो लड़ें या तो भागें। मगर भाई किससे लड़ेंगे? शेर तो बचे ही नहीं, जंगल तो बचे ही नहीं, लड़ेंगे किससे? हमने खराब सिचुएशन पैदा कर। एनवायरमेंट अगर खराब है तो आपका शरीर रिस्क में आ जाता है। आपने भोजन खराब किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाया, हाइब्रिड खाया और इनऑर्गेनिक खाया फूड, तो आपका शरीर रिस्क में आ जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म वीक हो गया किसी वजह से, आपका शरीर रिस्क में आ जाएगा, तो एंजाइटी बढ़ाता है। एंजाइटी आपको बचाने का तरीका है। आप शरीर को मजबूत कर दें, इसके ऑर्गन को स्ट्रांग कर दें, इसके फंक्शन को स्ट्रांग कर दें, एंजाइटी खत्म। 3 महीने कुंभक करो, एंजाइटी पता नहीं ऐसे चली जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग। तो देखना कहां है ये समझिए। आपका शरीर कमजोर है तभी एंजाइटी है, उसको स्ट्रांग कर देंगे, एंजाइटी खत्म। दवाई से कोई एंजाइटी खत्म नहीं होती, बल्कि सिचुएशन आपकी और खराब हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने शुरू से बताया ही रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Little related only. Hazari Prasad Gupta ji, gas problem. Hazari हाँ, गैस प्रॉब्लम है। गैस कब बनती है? आपने देखा कि अगर बाहर भी गैस कहां पे आपको बनते हुए दिखता है? कोई भी चीज जब सड़ती है तो गैस बनती है ना, बदबू आती है ना। जो कोई भी चीज अगर सड़ती है, फर्मेंट होती है, तो वहां पे गैस बनेगा। फर्मेंटेशन होगा तो गैस बनेगा। इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं? ये फर्मेंटेशन होता क्यों? धूप में नहीं होता फर्मेंटेशन, जहां धूप लगती है वहां फर्मेंटेशन नहीं होता, है ना। यानी अग्नि, हीट प्रॉपर रहेगी तो फर्मेंटेशन नहीं होगा। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज, अगर यूज नहीं होगी कोई भी चीज तो पड़े पड़े वो सड़ने लग जाए। देखिए, हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि आप खा के कुछ स्टोर कर लीजिए। उस भोजन को आप स्टोर नहीं कर सकते, उसको आपको इस्तेमाल ही करना होगा। इस्तेमाल करने की क्षमता है ना आपकी, यही मैंने बताया, मेटाबॉलिज्म यही बताया ना। अगर इस्तेमाल करने की क्षमता खराब है तो चीज डाइजेस्ट नहीं होगी, हजम नहीं होगी, फर्मेंट होगा, सड़ेगा। जब भी आपके शरीर में कोई चीज सड़ेगी तो गैस होगी। यानी कि पहली चीज आपको क्या समझनी है, क्यों सड़ रही है वो? क्योंकि आपका शरीर इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा जल्दी से। इसमें एक और पक्ष आ जाता है कि आपने जो खाया, अगर वो इस्तेमाल के लायक ही नहीं है तो क्या करेंगे, है ना। एक पार्ट क्या आ गया कि आपने जो खाया, क्या आपका शरीर इसको ठीक से इस्तेमाल कर पा रहा है? दूसरी बात, आपके शरीर के इस्तेमाल करने की क्षमता कितनी है? तीसरी बात, आपके शरीर में कहीं मेटाबॉलिक हीट, जठर अग्नि की कमी तो नहीं है ना। अच्छा, एक और तरीके से इसको और समझाता हूं। एक जवान इंसान को छू के देखिए और एक बूढ़े इंसान को छू के देखिए, दोनों में क्या फर्क नजर आएगा? एक जवान इंसान का शरीर गर्म होता है और एक बूढ़े इंसान का शरीर ठंडा होता है। तो उम्र के साथ आपने क्या खोया? आपने शरीर मेटाबॉलिक हीट खो दिया। इसको मैंने क्या बताया? किसी भी भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता खो दी आपने। इसीलिए भूख कम लगती है ना बुढ़ापे में। तो ये तो आजकल आमतौर पे जवान लोगों को भी हो रहा है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक हीट कमजोर हो गया। अब एक काम कीजिए, एक्सपेरिमेंट करो, सांस रोकिए थोड़ी देर, जितना आप आराम से रोक सकते, और रोकते जाइए 10 मिनट के लिए। आप देखेंगे आपको गर्मी लगने लग जाएगी। तो सांस रोका आपने, तो क्या हुआ आपके अंदर, शरीर के अंदर? गर्मी बढ़ गई ना। क्या बढ़ गया? मेटाबॉलिज्म बढ़ गया आपका शरीर का। इसीलिए हमारे पास में जो कुंभक करते हैं वो कहते हैं हमारी भूख बढ़ गई। भूख कैसे बढ़ेगी? जब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। तो आपका भूख बढ़ेगा तो रीजनरेशन भी ठीक होगा, आपके शरीर के अंदर रीजनरेशन भी अच्छा होगा। दूसरी बात, हाजमा होगा तो गैस बनना कम होगी। शुरुआत में तो निकलेगी क्योंकि भर गई है, इधर उधर फंसी हुई है। कुंभक करते ही खूब गैस निकलेगा, कुछ समय बाद में एकदम फिट हो जाएगा, कोई गैस नहीं निकलेगी, और आपका हाजमा बड़ा अच्छा हो जाएगा। आपको भूख लगेगी, स्वाद आएगा चीजों का, खाने का मन करेगा,
तो आपका शरीर भी उसको इस्तेमाल करेगा, टिश्यू बनाएगा, धातुएं बनाएगा, ऑर्गन्स बनाएगा, ऑर्गन फंक्शन ठीक करेगा। तो ये अगर आपको गैस से निजात नहीं, तो गैस की गोली खा के आज तक कोई भी गैस से नहीं निकला। मुझे एक इंसान का नाम बता दीजिए पूरी दुनिया में जो गैस की गोली खा के उसका गैस ठीक हो गया। नहीं, जिंदगी भर खाना पड़ता है। ऐसे लोग हैं जो जेब में लेके घूमते हैं ओसिड, रैंटैक, रैनिटिडीन, ओमेप्रोजोल, रैबिप्रोजोल, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो जेब में लेके घूमते हैं, कहते हैं जी हमारे को तो खाना ही पड़ता है, और बाद में चल के उनको पता नहीं क्या क्या कैंसर होते हैं। तो दवाई से कोई भी ठीक नहीं होता, गैस से दवाई से कोई भी ठीक नहीं होता। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज वाला एक बता दीजिए दवाई से ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर वाला बता दो, चलो हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया। कोई एक इंसान बता दीजिए जो कैल्शियम खा के हड्डियां मजबूत हो गई। ब्रेस्ट कैंसर 200% बढ़ जाएगा आपकी लाइफ में। एक इंसान बता दीजिए जो थायरोक्सिन खा के थायराइड ठीक हो गया, जिसका 50 प्रॉब्लम और आ जाएगी आपके शरीर में। तो आप कहां देख रहे हैं? आप लोग भारतीय हैं कि नहीं? आप लोग भारतीय हैं ना, तो आप लोग समझदार हैं। दुनिया में सबसे समझदार कौन है? भारतीय लोग हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो कुछ पढ़ लिख गए हैं। पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते, बिल्कुल समझदार नहीं होते, और खास करके फिरंगी तो बिल्कुल समझदार नहीं है। सबसे बेवकूफ प्रजाति दुनिया में कोई है तो गोरे हैं, फिरंगी हैं, और हम उनको अपना गुरु मानते हैं, आका मानते हैं, बॉस मानते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा। साइंस भारतीयों की देन है दुनिया को। साइंस का टैग लगा के कोई आपको खराब करे तो कभी ना कभी तो आंखें खोलनी पड़ेंगी, नहीं तो बर्बाद तो हो ही रहे हम। तो गैस की गोली खा के कोई गैस से नहीं निकला। आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, आपके बॉडी में डाइजेशन नहीं हो रहा, कोई आपके गट माइक्रोबायोम ठीक नहीं है। जब भी आप एक केमिकल खाते हो, है ना, जब भी आप एक केमिकल खाते हो, आपके पेट में कई सारे बैक्टीरिया हैं जो आपको पचाने में मदद करते हैं, वो मर जाते हैं। इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है आपके शरीर के साथ। हाजमा आप नहीं करते, आपका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष किसका है? बहुत सारे कीटाणुओं का। आप तो केमिकल डाल के कीटाणु मार देते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा के कीटाणु मार देते हो। हाजमा कैसे होगा? गैस ही बनेगी। दूसरी बात, पुरानी चीज खाएंगे, पैकेज फूड खाएंगे तो गैस बनेगी। हमारे देश में हमेशा से यह रिवाज रहा है कि हम ताजा भोजन ही करते हैं, है ना। उसको कहीं वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो हम बर्बाद हो रहे हैं और हो जाएंगे। शरीर खराब हो रहा है, बच्चों का भी शरीर खराब हो रहा है, बाकी तो छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, Archana Nahata ma'am writes about slip disc, right hand numbness, back pain. स्लिप डिस्क, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि आपका स्केलेटल सिस्टम, जो हड्डियां हैं ना, वो आपका स्ट्रक्चर बनाती है। हड्डियों की एक मजबूती होती है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर की मजबूती होती है। ऐसे मान के चलिए कि आप 33 चपटे चपटे स्टोन इकट्ठे कर लीजिए, बीच में ड्रिल करके होल डाल दो, उसमें रस्सी डाल दो, और 33 स्टोन आपके रस्सी में आ गए, और आगे ऊपर नीचे से उनको खींच लो, तो सारी के सारे हड्डी, वो स्टोन्स जो है इकट्ठे अलाइन हो जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे। वो लूज छोड़ोगे जैसे ही तो स्लिप करेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो आपकी स्पाइन की जो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसको व्यान कहते हैं। ये स्ट्रेंथ वीक हो गया, तो इसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे ये स्ट्रेंथ वीक हो गया? आपकी सांस लेने की क्षमता, सांस उसको रोक के और आराम से एक्सेल करने की क्षमता वीक हो। आप सांस को रोकेंगे तो आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे आराम से। इसे कहते हैं व्यान। सांस लेना, रोकना और फिर उसको आराम से एक्सेल कर पाना, ये क्षमता को व्यान कहते हैं। व्यान का मतलब क्या है? वही स्पाइन की स्ट्रेंथ है। तो ये स्ट्रेंथ अगर आपकी वीक हो गई है तो स्लिप डिस्क हो जाएगा। डॉक्टर बोलेंगे ऑपरेशन कर लो, ऑपरेशन कर लो, दूसरा स्लिप हो जाएगा। भाई आप तो इलाज कर ही नहीं रहे हो। एक शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम आई, करवा लो ऑपरेशन, दूसरे में आ जाए। तो ऑपरेशन क्या इलाज है इसका? नहीं, इमरजेंसी हो तो करवा लीजिए। देखो भाई, इमरजेंसी हो, कोई चीज बिल्कुल ही खिसक गई है, उसको सीधा करने के लिए करवा लीजिए ऑपरेशन, ठीक है, वहां तक ठीक है, मगर इलाज तो करो।
ट्रीटमेंट तो करो। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, उसकी स्ट्रेंथ को मजबूत तो करो। नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, योगा शोगा करना पड़ेगा। अरे बाबा बैठ के कर सकते हैं स्ट्रेंथ, अभी तो बताया मैंने। इनहेल, होल्ड और आराम से एक्सेल की क्षमता, जैसे ये प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये हम सिखाते हैं, व्यान, क्रिया, कुंभक, 3 चीजें सीखेंगे आप। जब आपको हम अष्टांग चिकित्सा करवाएंगे 3 चीजें सीखेंगे। क्या? अंगन्यास, हठविन्यास। हठविन्यास में मूवमेंट है, अगर जो नहीं कर पाते पहले मूवमेंट ना करें। तीसरा पार्ट है कुंभक थेरेपी, बैठ के करना होता। पहले आप शरीर में शक्ति बना लीजिए, है ना। वो जो कुंभक थेरेपी है उसमें 3 चीजें सिखाते हैं। तीसरी चीज क्या? व्यान, क्रिया, कुंभक। यानी आपका जॉइंट का स्ट्रेंथ, स्पाइन का स्ट्रेंथ, स्केलेटल स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ, ये बढ़ाते हैं। पहली चीज बता दिया स्ट्रेंथ। दूसरा बैलेंस, अलाइनमेंट खराब है तब जाके एक जगह प्रॉब्लम आती है। एक घुटना तो घिस गया, दूसरा क्यों नहीं घिसा? भाई एक कमर में एक तरफ तो पेन होता है, दूसरा तो ठीक है। ऐसा होता है ना, एक में ज्यादा है एक में कम है, तो अलाइनमेंट गड़बड़ है। गाड़ी को आप बहुत गड्ढे वाली जगह पे ले जाइए, अपने कार को, फिर आके अलाइनमेंट कराना पड़ता है। नहीं तो स्टीयरिंग जो है इधर घूमती है, गाड़ी उधर घूमती है कि नहीं। आप तो पता नहीं कैसे यूज करते हैं अपने शरीर को, कहां जाते हैं अलाइनमेंट कराने। कार की तो वर्कशॉप है, वेयर इज ह्यूमन वर्कशॉप? ये ह्यूमन वर्कशॉप है। आज तक दुनिया में ह्यूमन वर्कशॉप नहीं थी, हमने वही खोला हुआ है। इसमें आपको अलाइनमेंट हम बताते हैं। जो हठ विन्यास है उसके अंदर ऑलमोस्ट सभी अलाइनमेंट है, यानी बैलेंस बनाना आपके शरीर का। फिर क्या होगा, एक तरफ नस दब रही है तो एक तरफ में झंझनाहट ज्यादा है, एक तरफ में सेंसेशन ज्यादा है, एक तरफ में नमनेस ज्यादा है। क्योंकि आपकी जितनी भी नसें हैं हड्डियों से निकलती हैं, स्पाइन से निकलती हैं, कमर से निकलती हैं, स्पाइन वाले पार्ट से नीचे की तरफ। तो स्पाइन को लूज करेंगे, अलाइनमेंट लाएंगे तो ठीक हो जाएगा, है ना। तो एक बताया स्ट्रेंथ, दूसरा बताया बैलेंस, और तीसरा होता है रिदम, फ्लो। नसों में सेंसेशन फ्लो होता है ना। रक्तवाहिकाओं में यानी आर्टरीज और वेन्स में ब्लड फ्लो होता है, उनमें हार्मोन फ्लो होता है। ये फ्लो को हम लय भी कहते हैं या रिदम कहते हैं। तो ये रिदम कैसे ठीक कर पाएंगे? अगर एक तरीके से आप अपने शरीर को, अपनी सांसों को इस्तेमाल करेंगे तो रिदम ठीक होगा। तो 2-3 चीजें बताया, रिदम, बैलेंस, स्ट्रेंथ। रिदम को हम भाव कहते हैं, वो भाव लाता है हमारे शरीर में। बैलेंस को हम राग कहते हैं, और स्ट्रेंथ को हम ताल कहते हैं। भा र त, भारत, आपके देश के नाम में ही हेल्थ है, पर आप अपने देश के नाम पे ही नहीं जाते, आपको तो दूसरे देश में जाना है। नहीं आपके देश के नाम में ही साइंस है हेल्थ का, उसको आप ठीक कर लीजिए। शरीर का रिदम, बैलेंस और स्ट्रेंथ ठीक कर लें, आप देखेंगे ये चीजें बिल्कुल ही आप अच्छे से अपने शरीर को इस्तेमाल कर पाएंगे और कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन। Okay, again there is a question of Redmi Note, knee pain, back pain, which has already been answered. And Ria ma'am now writes about have pain in spine and the whole body. It elevates at night, nothing diagnosed. Doctor said it's fibromyalgia. हाँ, ठीक है, ठीक। ये जो प्रॉब्लम है ना, पेन एक चीज होती है, जिसे अंग्रेजी में हमेशा एक नाम डाल देते हैं, आइटिस, आर्थराइटिस, है ना। आइटिस डाल देते हैं, आइटिस हो गया। माइल्जिया तो आइडिया लगा दिया। माइल्जिया का मतलब होता है मसल का डीजेनरेशन होना, ठीक है ना। तो लेकिन पेन कब होगा? पेन हमेशा इन्फ्लेमेशन से होगा। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है आपको थोड़ा मैं बताता हूं। ऐसे कीजिए, नाखून से अपने स्किन को ऐसे जोर से रगड़ दीजिए, जलन होगा ना, स्किन छिल जाएगी तो जलन होगा। ये जो जलन है ना, इसको कहते हैं आइटिस या इन्फ्लेमेशन, ज्वलनशीलता, है ना। अभी क्या करो, थोड़ा सा घी लगा लो यहां पे, देखो जलन खत्म हो जाएगा, है ना। अब ये जलन आपके शरीर में कैसे पैदा होता है? अब अंदर की बात करते हैं, तो बाहर की बात है, अंदर की बात करते हैं।
तो जब एक केमिकल दवाई लेते हैं तो वो बम है, केमिकल बम है, वो फूटेगा कहां? आपके लीवर में फूटेगा। तो ज्वलनशीलता पैदा करेगा आपके लीवर में, इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा, मेटाबॉलिज्म को वीक करेगा। तो आपका लिवर क्या करेगा? वो भी थोड़ा घी लगाएगा ना अपने ऊपर, यानी कि फैट क्रिएट करेगा, फैट बनाएगा ना, इसे कहते हैं फैटी लीवर। अरे फैटी लीवर तो आपको बचाने के लिए है, आप ज्वलनशीलता क्यों डाल रहे हो लीवर पे? अगर वो नहीं करें तो आप उसको, लीवर को फैट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज बॉडी क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा वो? क्योंकि उससे वो कॉर्टिसोल बनाएगा, कॉर्टिसोल से आपके इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो जैसे ही कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, आप क्या कहेंगे? ओहो ये तो गलत कर दिया, ये तो गड़बड़ हो गई, फैटी लीवर हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये तो गड़बड़ हो गई। यानी कि आप तो शरीर को बचाने नहीं दोगे, फीवर क्रिएट करेगा कोरोना को मारने के लिए आपका शरीर। आप क्या करेंगे? एक डोलो खा लोगे, पैरासिटामोल खा लोगे, फीवर को कम कर दो। तो आप शरीर को काम ही नहीं करने देते। उल्टी करेगा शरीर तो उल्टी बंद कर दोगे, दस्त करेगा दस्त बंद कर दोगे, ब्लड प्रेशर करेगा बचाने के लिए, ब्लड प्रेशर कम कर दोगे। मतलब आपने तो क्रिमिनल बना दिया ना शरीर, आपने तो क्रिमिनल बना दिया शरीर को। इसको कुछ करना ही नहीं दे रहे। अब इसको कुछ करने ही नहीं दोगे, फिर प्रॉब्लम आएगी तो बोलेंगे अब मुझे प्रॉब्लम आ गई। अरे करने ही दे रहे, प्रॉब्लम आ रही है तो एक्सेप्ट करो ना, ठीक है, आने दो प्रॉब्लम। तो आपने अपने शरीर को क्रिमिनल क्यों बना दिया? और इसको साइंस बोलते हैं। अपने शरीर को क्रिमिनल बना के बोलते हैं ये साइंस है। अपने शरीर को मारना साइंस है। तो फिर कौन बचाएगा आपको? सारी बीमारियां बढ़ रही है ना। अगर आप शरीर को मारने को साइंस बोलोगे तो सारी बीमारियां बढ़ा रहे हो आप। दूसरी बात, मेटाबॉलिज्म खराब होगा, इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो क्या बनेगा? वेस्ट बनेगा ना ज्यादा। इसे टॉक्सिन कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टॉक्सिन। आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ रहे हैं ना लोगों के, है ना, एसिडिटी होती है, एसिड रिफ्लक्स बढ़ रहा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बढ़ रहा है लोगों का, एलर्जीज बढ़ रही हैं, हाँ या ना? कितनी एलर्जीज बढ़ रही हैं आपके शरीर में। कॉन्स्टिपेशन तो एक कॉमन चीज हो गई। तो आपका शरीर डिटॉक्स नहीं कर पाएगा। टॉक्सिन तो बना रहे हो आप शरीर में, लेकिन उसका डिटॉक्स फैक्टर ही कमजोर कर दिया। तो अगर इन्फ्लेमेशन होगा, टॉक्सिन होंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। टॉक्सिन से ही तो इन्फ्लेमेशन होगा बॉडी के अंदर। जिसे आप कुछ भी कहोगे, बोलोगे पूरा पेन हो रहा है शरीर में, टॉक्सिन जहां भी मसल्स में या उन टिश्यूज की जगह पे अगर बैठे होंगे तो आपके शरीर में पेन ही होगा। तो एक चीज मैं आपको सीधा बता रहा हूं, इमरजेंसी मैनेजमेंट बता रहा हूं, शरीर को ठंडा कर लोगे पेन चला जाएगा, मगर वो इलाज नहीं है। शरीर को ठंडा कर लो, हाइड्रेट कर दो, यानी पानी का पट्टी लगा लो किसी जगह पे, शरीर को थोड़ा उल्टा लिटा लो, सिर नीचे पांव ऊपर, तब भी पेन कम हो जाएंगे। शरीर को थोड़ा ठंडा कर लेंगे तो पेन कम हो जाता है, लेकिन वो इलाज नहीं है। इलाज क्या है? आपका लिवर को आपको मजबूत करना पड़ेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है इसका। माइल्जिया क्यों हो रहा है? माइल्जिया मतलब मसल्स बन नहीं रहे। दोबारा रिलेट कीजिए शुरू से लेके अभी तक मैं क्या बता रहा हूं, आपका रीजनरेशन ही नहीं हो रहा, मसल बनेंगे कहां से? उसको मिल ही नहीं रहा भोजन, तो माइल्जिया ही होगा। मसल ठीक से बन नहीं पाएंगे, वो भी इन्फ्लेमेशन में आएंगे, वो भी पेन में आएंगे। पेन किलर खा के आप पेन काट दोगे, ठीक इलाज नहीं कर रहे, आप ठीक नहीं कर रहे कंडीशन को। इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पेन किलर खा लो, मगर इलाज जरूर कीजिए, क्योंकि वो जो गोली खा रहे हैं ना वो भी आपको नुकसान कर रही है। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट इलाज नहीं होता, दवाई खाना ट्रीटमेंट नहीं होता। दवाई खाना एक मैनेजमेंट है, उस समय कर लीजिए, 2-4 दिन हफ्ता भर कर लीजिए, मगर साथ में इलाज कीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए, ताकि आगे चल के आपको दवाई खाने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो दवाई गोली खा के ही जिएंगे क्या? रोज 15-16 गोलियां खा रहे हैं लोग आजकल, और उम्र जैसे ही बढ़ती जाएगी उसका नुकसान इतना होगा, एक दिन बेड पे आ जाओगे,
जिस दिन आईसीयू में आ गए आप, उसके बाद भूल जाइए, आपका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आपके हाथ पांव भी नहीं चलेंगे। जब तक आपके हाथ पांव चल रहे हैं, इलाज करना शुरू कर दो, ताकि हाथ पांव चलने रुके नहीं। ठीक है ना? तो फाइब्रोमाइल्जिया का कौन सा इलाज है? कोई इलाज नहीं है, दवाई में कोई इलाज नहीं है। बाद में आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो फाइब्रोमाइल्जिया का कोई भी इलाज नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को खूब इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी अगर हमारे देश आजाद रहता, पहले से गुलाम नहीं बनाया होता, तो 300 साल पहले ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर देते हम लोग। ये तो लेट डेवलप किया टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल करें, आपके हाथ में ना बहुत पावर है। तो एंटरटेनमेंट की जगह में ना थोड़ा सर्च किया करें, है ना? थोड़ा सर्च किया करें कि ये जो बोल रहे हैं इसका इलाज क्या है, या कुछ भी नहीं है इलाज। तो क्या करना चाहिए? फिर आप ऑल्टरनेटिव ढूंढें, है ना? हमने तो ऑल्टरनेट में पैसा ही नहीं डाला। सारा पैसा तो आप दवाई बनाने में डाल देते हो अपना। जहां पैसा डालते हो वही बढ़ता है ना। आपने दवाइयों में पैसा डाला, दवाइयां बढ़ गई। अब हमारा रिक्वेस्ट क्या है आपसे? थोड़ा हेल्थ में पैसा डालें, ताकि हेल्थ भी बढ़ जाए। आप दवाई में पैसा डालेंगे तो बीमारियां बढ़ जाएंगी। आपने बीमारी बढ़ाने के लिए पैसा डाला तो बीमारियां बढ़ गई। हाँ या ना? कौन सी बीमारी कम हो गई बता दीजिए। आपने बीमारी बढ़ाने के लिए पैसा डाला है तो बीमारियां बढ़ गई। अब मैं तो यही बोल सकता हूं आपसे कि आप हेल्थ बनाने में थोड़ा पैसा डाल दीजिए, हेल्थ बढ़ जाएगा। आपको चाहिए क्या, ये आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, Shraddha ma'am writes that मेरी spine surgery 1920 में हो चुकी है, L4 and L5 की। अब ऊपर बैक पेन रहता है, क्या मैं अष्टांग चिकित्सा कर पाऊंगी? क्योंकि मैं नीचे 100% नहीं कर बैठ पाओ। पाती, हाँ ठीक है झुक वो भी नहीं पाती। वो समझ गया समझ गया। देखो, आपका ऑपरेशन अगर हम कर दिया जाएगा ना, तो ऑपरेशन अभी इसके बारे में डिटेल में मैं क्या बताऊं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट। सर्जरी ना भारत की देन है। हमारे देश में एक महर्षि सुश्रुत हुए, है ना? उन्होंने सर्जरी की शुरुआत की थी, जिसे हम ऑर्गेनाइज सर्जरी कहते हैं। वैसे सर्जरी हमारे देश में हमेशा से होता है। यही हिपोक्रेटस सीख के गया हमारे देश से, है ना? आजकल हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, सुश्रुत का ओथ नहीं लेते। जिससे सीख के गया उसके गुरु का ओथ नहीं लेते। ऐसी तो हालत है हमारी। तो सर्जरी हमेशा मर्म स्थान को देखते हुए ही की जाती है। लेकिन अंग्रेजों के पास इतनी बुद्धि नहीं होती, वो बुद्धि में बहुत वीक होते हैं। सबसे बेवकूफ प्रजाति कोई हुई है अगर इस पृथ्वी पे, तो वो अंग्रेज हुए या फिर फिरंगी हुए। अब वो सर्जरी ले तो गए, मगर मर्म की समझ ही नहीं ले गए, क्योंकि उनकी इतनी समझ ही नहीं थी। तो सर्जरी अगर बिना मर्म ज्ञान के किया जाए, तो हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी को हम डिस्ट्रॉय करते जाएंगे। और कई बारी अनसक्सेसफुल सर्जरी इसलिए होती है क्योंकि आपने मर्म को छेड़ दिया, काट दिया। धीरे धीरे करके वो इंसान मर जाएगा। वो इंसान ठीक, वो ह्यूमन बीइंग ठीक होने की जगह उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाए। तो आजकल हम देखते हैं कि सर्जरी करने के बाद लोग खत्म हो जाते हैं। छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े। आपके देश के बहुत बड़े बड़े नेता सर्जरी की वजह से खत्म हो गए। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी। आपको समझ नहीं आ रहा, बस इतनी सी बात है। क्योंकि आप फिरंगियों के फेर में पड़े हुए हैं। तो सर्जरी एक ऐसा साइंस है जिसको बहुत इवॉल्व होने की जरूरत है। और वो इवॉल्व एक अंग्रेज नहीं कर सकता, फिरंगी नहीं, वेस्टर्नर नहीं कर सकता। वो इवोल्यूशन एक भारतीय कर सकता है, लेकिन हमें अपनी परंपराओं पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो साइंस है। साइंस के ठप्पा लगा के आजकल जो कर रहे हैं ना, वो साइंस नहीं है। उसमें कुछ भी साइंस नहीं है। नहीं तो ह्यूमैनिटी इंप्रूव हो जाती ना, मानवता का स्वास्थ्य बढ़ जाता। हमारा स्वास्थ्य कमजोर हो गया। तो जिस साइंस के नाम पे जो काम कर रहे हैं हम, उसमें साइंस नहीं है। साइंस छोड़ के सब कुछ, लेकिन टैग लगा हुआ साइंस का। तो सर्जरी की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
कई बारी सर्जरी की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, क्योंकि जो सर्जरी कर रहे हैं उनको मर्म का कोई भी ज्ञान नहीं। मर्म के बिना सर्जरी कहीं ना कहीं बहुत नुकसान कर जाएगा ह्यूमैनिटी को। मगर इतनी समझ भी चाहिए ना, इतना समझाएं भी किसको समझाएं? समझ वाला इंसान चाहिए, पढ़ा लिखा तो समझदार होता नहीं है। अब क्या करें? तो आप क्या करें, एक चीज, आपके शरीर में 6 बल होते हैं, षड बल कहते हैं इनको। आपके शरीर में 6 बल होते हैं, देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। अगर आपके शरीर के बलों को आप बढ़ा दें, तो अगर नुकसान भी कर दिया आपके शरीर का, तो आप झेल जाएंगे, आपका शरीर झेल जाएगा। तो अभी क्या कर सकते हैं? धीरे धीरे करके अपनी कैपेसिटी से अपने शरीर पे काम करना शुरू कीजिए, इनके षड बल बढ़ा दीजिए। उसके बाद जो नुकसान भी हुआ है उसको काफी हद तक आप ओवरकम कर लेंगे। अभी झुक भी नहीं पा रहे, लेकिन अगर आप 6 महीने तक अष्टांग चिकित्सा कर लें, आप देखेंगे झुकना ही क्या, आप दौड़ भी पाएंगे। शायद एक बिल्कुल ही जिम्नास्ट ना बन जाए, मगर कम से कम अपनी लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये तो इंश्योर कर ही सकते हैं। फिर अगली सर्जरी की तैयारी, अगर आप ठीक नहीं करेंगे अपने आप को, तो क्या कर रहे हैं? अगली सर्जरी की तैयारी कर रहे हो। इसको क्या कहेंगे? जेस्टेशनल पीरियड। एक सर्जरी के बाद जो रुका हुआ टाइम है वो दूसरी सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं। तो अपना ट्रीटमेंट करें। कोई भी बाहर की चीज आपके शरीर को ठीक नहीं कर सकती, आपके शरीर के बल को बढ़ाना ही पड़ेगा, और वो कुंभक से होगा। अनीता राजू मैम टॉक्स अबाउट मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक हो सकता है क्या? देखो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी ठीक हो सकता है, केवल टाइम का फर्क होता है। क्या है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी किसी और तरीके से ठीक नहीं होगा। आपको अपने शरीर के, जैसे मैंने बताया, मेटाबॉलिज्म ठीक करना होगा, रीजनरेशन को बढ़ाना होगा, स्ट्रेंथ बैलेंस और रिदम ना, स्ट्रेंथ बैलेंस और रिदम आपको वापस लेके आना पड़ेगा। टाइम वेरी कर सकता है, किसी कोई बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कोई इंसान 3 महीने में ठीक हो जाएगा, कोई इंसान को 6 महीने लगेंगे, किसी को 3 साल लगेंगे। तो मैं आपको डील दे रहा हूं, अगर 3 साल में ठीक हो जाते हैं सारा, तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। आप जितना सोचेंगे ना जल्दी ठीक हो जाए, आपका शरीर खराब ही होता जाएगा। अभी तक तो हुआ नहीं ना, दवाई खा के आप सोच रहे थे फटाफट ठीक हो जाते हैं, 1 हफ्ते में, 1 दिन में, 2 दिन में। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, कितने साल हो गए। तो आपका शरीर ठीक कर सकता है आपको, ये पक्का है। उसको सपोर्ट कीजिए, उसके बलों को बढ़ाइए, उसका मेटाबॉलिक फैक्टर बढ़ाइए, उसके ऑर्गन स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, उसका डाइजेस्टिव फैक्टर बढ़ाइए, उसका डिटॉक्स फैक्टर बढ़ाइए, और आप देखेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आराम से ठीक हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। हमारे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से कई प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कई लोगों को ड्रॉप फुट हो जाता है, पांव जो है ढीला छूट जाता है। यही चीज कई अलग अलग जगह पे भी आते हैं, आपके कंधों में, स्पाइन में, स्लिप डिस्क, कहीं ना कहीं इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का ही रोल है। और हमारे पास में ऐसे लोग हैं जो मैराथन रनर हैं, वो ड्रॉप फुट की वजह से आए और उन्होंने कहा हम कभी भी मैराथन नहीं दौड़ पाएंगे, और 6 महीने के बाद वो अष्टांग चिकित्सा करने के बाद मैराथन की तैयारी करने लग गए। क्या हुआ? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक हो गया। ऐसे लोग हैं जो कि कुंभक का प्रैक्टिस करने के लिए जब आए तो उस समय उनको लकवा मारा हुआ था, पैरालिसिस था एक साइड में, नहीं, और 6 महीने कुंभक करने के बाद उनको ऑलमोस्ट 90 to 95% सेंसेशन आ गया, कंट्रोल आ गया उनका। तो हाथ पांव कंट्रोल में नहीं है, कुंभक करने लगे, हाथ पांव कंट्रोल में आने शुरू हो गए, चल भी नहीं पाते थे, चलना शुरू हो गया, क्या दौड़ना शुरू हो गया। कौन ठीक कर रहा है आपको? आपका शरीर ठीक कर सकता है आपको, और कोई नहीं कर सकता। मगर क्या करना पड़ेगा? आपके शरीर के बलों को बढ़ाना पड़ेगा, मेटाबॉलिक फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा, जैसा मैंने बताया वो उनको बढ़ाना ही पड़ेगा, और कोई इसका चारा नहीं है।
और किसी चीज से ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक नहीं होगा, मगर ये ठीक हो सकता है, 100% हो सकता है। आप जो सोच रहे हैं उससे नहीं होगा, आपका शरीर ठीक कर देगा। और आपके शरीर ठीक करने का जो उसका मैकेनिज्म है वो कुंभक है। आपके शरीर का फंक्शनल मैकेनिज्म है ये कुंभक, कोई कहीं और से नहीं आया, किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया हुआ, इसी से आपका शरीर बना हुआ। जैसे कि सांसें हैं, जैसे कि सांसें हैं कहीं और से नहीं आई, ये हमेशा से थी। क्या सांसें वेद से आई है? नहीं नहीं, सांसें वेद से नहीं आई है, वेद सांसों से आया है। वैसे ही लाइफ कुंभक से आया है, कुंभक कहीं से नहीं आया, लाइफ कुंभक से आई है। तो वो फंक्शनल मैकेनिज्म है कुंभक आपके शरीर का, उसी को इस्तेमाल करके हम अष्टांग चिकित्सा कर रहे हैं। ये आपके ही शरीर के बलों को इस्तेमाल करके उसको बढ़ा के ठीक करने का एक साइंस है, जिसको एक तरीके से हम आपको सिखाते हैं, आपका डायग्नोसिस करके कि कौन सा पक्ष वीक हो गया है, तो उस वीक वाले एस्पेक्ट को हम डायग्नोस करते हैं और हर एक के लिए वो कस्टमाइज करते हैं हम पूरे के पूरे कुंभक को। हाइपरटेंशन पेशेंट हैज टू डू कुंभक, बट इफ यू आर जस्ट हाइपरटेंसिव, अगर आपका प्रॉब्लम केवल ब्लड प्रेशर है तो आप नंबर छोड़ दीजिए, साथ में ब्लड प्रेशर लिखिए, फिर हम आपको सही प्रोग्राम की तरफ में डायरेक्ट कर देंगे। वी रन अ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज प्रोग्राम। लेकिन अगर आपको शरीर में कुछ और चीज है, जैसे न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है और साथ में ब्लड प्रेशर है, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अष्टांग चिकित्सा कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर वालों को, हाइपरटेंसिव को कुंभक करना कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि कुंभक से ही ठीक होगा और कोई तरीका नहीं। आपका कुंभक ही तो कमजोर हो गया, सांस रोकने की क्षमता ही तो कमजोर हो गई हाइपरटेंसिव की। आप जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सांस फूलती है ना, तो वही तो कमजोर हो गया, तो वही तो करना पड़ेगा। अगर पांव कमजोर हो गए तो व्हीलचेयर में बैठे रहेंगे क्या? पांव मजबूत हो जाएंगे व्हीलचेयर में बैठने से, या बेड पे पड़े रहने से? नहीं नहीं नहीं, उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी क्षमता से, अपनी कैपेसिटी से इस्तेमाल करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ जी। Okay. Rita ma'am talks about facing thyroid, systemic lupus, vasculitis, and now knee problem. Will this kumbhak therapy work? सबसे पहली बात, आप ये जितनी बातें कह रहे हैं इसके अंडरलाइन कॉज में क्या बताते हैं आपको? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये प्रॉब्लम आपने बहुत बता दी, मगर इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक होता है क्या? नहीं होता। तो आप कितने भी नामकरण कर लीजिए, देखो ये जो फिरंगी साइंस है ना, ये फिरंगी साइंस केवल नामकरण करना जानता है, किसको कुछ नाम रख दिया, ठीक कैसे होता है? नहीं जी, ठीक तो होता ही नहीं। अरे भैया, नाम रखने के लिए हो क्या आप? हाँ जी बिल्कुल, नाम रखने के लिए, अवार्ड देने के लिए, और कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने दुनिया बर्बाद कर दी है। आपको नहीं समझ में आ रहा जब बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी तब तो समझने की कोशिश करोगे कभी। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या ठीक होता है? 100% ठीक होता, लेकिन दवाई से और खराब है। दवाई से हुआ है तो दवाई से तो ठीक नहीं होने वाला, ठीक है। इम्यून थेरेपी करोगे और बर्बाद हो जाएगा आपका शरीर, और बर्बाद हो जाएगा, 100% गारंटी। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये आपका शरीर ठीक कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। उस पर काम करना पड़ेगा, इसके रिवर्सल फैक्टर को, है ना, रिवर्सल मैकेनिज्म को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रिकवरी मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। शरीर का रिकवरी मैकेनिज्म होता है ना, आप सोचते हैं दवाई से कोई ठीक हो, दवाई से आज तक कोई ठीक नहीं होता, और हुआ नहीं, बर्बाद ही हुआ सभी। दवाई से नहीं होता, शरीर अपने आप को खुद ठीक करता है, ठीक है ना। शरीर का रिकवरी मैकेनिज्म होता है, तरीका रिकवरी, उसको कमजोर कर दोगे फिर रिकवर नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम आए। तो हम क्या कर रहे हैं, शरीर के रिकवरी मैकेनिज्म को बढ़ा रहे हैं। कुंभक से वो बढ़ता है, कुंभक से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। कुंभक आप करते रहेंगे, आप देखेंगे कि आगे चल के आप किसी भी बीमारी में जल्दी नहीं आए, इवन इन्फेक्शन, यहां तक कि इन्फेक्शन भी आपको नहीं। कोरोना तो एक चीज थी ना, अभी कोरोना जैसे बहुत आने वाले हैं आगे, बचना है कि नहीं बचना? आपका शरीर बचाएगा, दवाई नहीं बचाएगी, दवाई तो खत्म कर देगी आपको। तो उसको आप, उसका शरीर का रिकवरी मैकेनिज्म उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, उससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपका ठीक हो जाएगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसी चीज नहीं है जो ठीक नहीं होती,
बिल्कुल 100% ठीक होते हैं। हाँ, दवाई से ठीक नहीं होती। तो जब आपका डॉक्टर बोले ना ये ठीक नहीं होता, तो उसको बोलो आगे अपना वर्ड तो लगाओ सही, ये ठीक नहीं होता मेडिसिन से। यानी फिर तो कम से कम आप सोचेंगे ना कैसे ठीक होता, उस तरफ जाएंगे। हैं, तो सेंटेंस पूरा नहीं करते, वो सेंटेंस पूरा करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि ये ठीक नहीं होता मेडिसिन से, क्योंकि मेडिसिन के एक्सपर्ट है ना, वो लाइफ के एक्सपर्ट नहीं है। तो मेडिसिन से ठीक नहीं, मगर 100% ठीक होता, और ये आपका रिकवरी मैकेनिज्म आप बढ़ा देंगे तो ठीक हो जाएगा। Chandrila ma'am talks about knee pain due to loss of synovial fluid, tennis elbow, low back pain, and in general musculoskeletal problems, difficulty walking, squatting, sitting on देखिए floor. ये सब आप जो बोल रहे हैं ना, ये सब जो बोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया, किसी ने स्कैन करके देख लिया, बोला साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया। अब क्यों कम हुआ वो तो बताओ। अरे बाबा, साइनोवियल फ्लूइड कम क्यों हुआ है, वहां पे जाना पड़ेगा आपको। कम हो गया, ये कोई वो थोड़ी डायग्नोसिस थोड़ी है। साइनोवियल फ्लूइड तो एक्सीडेंट से भी निकल जाएगा। क्यों कम हो गया आपके अंदर, दूसरे में क्यों नहीं कम हुआ? तो गो बैक, पीछे जाइए, अब पूछिए क्यों कम हो गया मेरे अंदर। उसके बाद पूछिए ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, तो पता चलेगा किसी को नहीं मालूम क्यों हो गया। किसी को नहीं मालूम कि ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसीलिए ठीक नहीं होता ये। आप सोचते हैं डॉक्टरों को मालूम है, बिल्कुल नहीं मालूम। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है? सभी को मालूम होगा ना, सभी को मालूम है हार्ट ब्लड को पंप करता है, हाँ या ना? मगर आपको क्या मालूम है कि हार्ट ब्लड को पंप नहीं करता? तो ज्ञानी तो बन के बैठे हुए हैं सारे के सारे। ये मॉडर्न रिसर्च, कटिंग एज रिसर्च बता रहा हूं, हार्ट ब्लड को पंप नहीं करता। हजारों सालों से बोल रहे हैं हम। हृदय का मतलब खींचना, हार्ट खींचता है ब्लड को, पंप नहीं करता। और आप सभी ज्ञानी बने बैठे हैं, आपसे ज्यादा आपके डॉक्टर ज्ञानी बने बैठे हैं, हार्ट ब्लड को पंप करता है। आप बता दो आपका ज्ञान क्या ठीक करेगा, जब आप जानते ही नहीं चीजों को। डायबिटीज क्यों होती है, व्हाट इज डायबिटीज, किसी को नहीं मालूम। आपको लगता है कि आपके डॉक्टर को मालूम है, अब मालूम होता है और ठीक नहीं कर देते। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड का तो कोई प्रेशर ही नहीं होता, आर्टरी पे हो ही नहीं सकता। ये फिजिक्स के लॉ के विरुद्ध है। फ्लूइड डायनामिक्स में किसी ने अगर साइंस पढ़ा हो तो उसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल है, वो कहता है लैमिनार मूवमेंट कैन नॉट एक्सर्ट अ वर्टिकल प्रेशर। और यही आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि हाँ वर्टिकल प्रेशर, वो कह रहा है कि वर्टिकल प्रेशर होता ही नहीं, आपके डॉक्टर बोल रहे हैं हाँ जी होता। तो आपका ब्लड प्रेशर में इक्विपमेंट में जब आप पट्टा बांधते हो, क्या दबाते हो, मसल नहीं दबाते क्या, ब्लड को ही दबाते हो। तो मैंने बताया फिरंगी जितना बेवकूफ दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, ना होगा कभी। आप उनके चक्रों में पड़ गए हो, बस और कुछ भी नहीं है। तो साइंस खो दिया आपने, आपको साइंस का कुछ अता पता, जीवन का कुछ अता पता नहीं रहा। हार्वर्ड का रिसर्च है कि 25 साल पढ़ाई करवाओ किसी को, 70% इसका इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। पढ़े लिखे लोगों की बात मानोगे तो बर्बाद ही होंगे, और कुछ नहीं हो सकता। समझदार लोगों की बात माननी चाहिए, ज्ञानियों और समझदार लोगों की बात माननी चाहिए, और आपको भी समझदार बनना चाहिए। इसलिए कहा टेक्नोलॉजी को खूब इस्तेमाल कीजिए, इंफॉर्मेशन एज है, खूब सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है, मगर हर एक पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया तो उसको वापस रिप्लेस करो ना, क्या रिप्लेस नहीं होता? होता, हो सकता है। दूसरी चीज, बहुत सारे फैक्टर्स आपको डिस्क्राइब भी मैं कर दूं तो ये तो ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का क्लास हो जाएगा। सारा गूगल भी भर लीजिए अपने दिमाग में तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा कब होगा, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। तो थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए, थोड़ा प्रैक्टिकल बने। केवल ज्ञान इकट्ठा करके कुछ नहीं होने वाला। ज्ञान इतने सारे इकट्ठा करने के बाद में ह्यूमन बॉडी खराब होती जा रही है, ह्यूमन जीनोम खराब होता जा रहा है। हमारे नए नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो पैदा होते ही बीमारियों में आ रहे हैं। 10 में से 6 बच्चे को एडीएचडी प्रॉब्लम है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हमारे बच्चों में बढ़ रहा है। तो
क्या ये ठीक होगा? 100% ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन अप्रोच आपको अलग लेना पड़ेगा, है ना। दवाई से नहीं ठीक होगा। तो दवाई अगर लेना है आपको, और दवाई लेने का अगर फैशन है, और आपको वो फैड में टिक मार्क लगाना कि मैं भी दवाई लेता हूं, लेती हूं, तो आप थोड़ा नेचुरल की तरफ में चले जाएं, थोड़ा आयुर्वेद की तरफ में चले जाएं, है ना। दवाई लेना ही है, मगर उससे भी ठीक नहीं होगा, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं। थोड़ा आराम मिल जाएगा, मगर उससे ठीक नहीं होगा। आप अपने शरीर का रिकवरी मैकेनिज्म बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ बैलेंस रिदम को दोबारा से लाना पड़ेगा, षड बलों को स्थापित करना पड़ेगा, अष्टांगों को आपको रिवाइव करना पड़ेगा, रीजनरेशन करना पड़ेगा, अपना बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके आपका शरीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये पक्का है। टाइम अलग अलग लग सकता है, मगर ये इसी से होगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नहीं ले पाएंगे। Okay, anybody from the audience, before we end the session, one last question. Anybody, you can raise your hands, please. Okay, so Kumari ma'am, I will take up your question. You can unmute yourself, please. Okay, Rashi Arora, you can unmute, please. Hi, Yes, ma'am. Rashi. Good evening. Yes, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening, Swamiji. So I just, Good evening. I'm Hello. yes. Hello, ma'am. Ma'am, am I audible? हाँ Yes, हाँ हाँ, Rashi बोलिए। Arora. जी तो मैम बस जस्ट वांटेड टू आस्क कि ना आई एम 40 years old, तो मेरे ना एंकल्स में स्वेलिंग कुछ ईयर्स से थी, तो अब वो थाइज में वेन्स बल्जिंग हो गई है। तो मेरा प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग का जॉब होता है, तो मैंने अब थोड़ी कोशिश करके उसको कम कर दिया है। आई जस्ट वांट टू नो कि दिस थेरेपी विल वर्क फॉर मी आल्सो। This therapy will work for anything related to I have neuromusculoskeletal. thyroid problem also. हाँ, anything related to neuromusculoskeletal problem, this therapy is designed to work for that. तो swelling क्यों हो रहा है आपका? एक और अभी मैंने कुछ चीजें बताई थी आपको। देखिए, आपके पांव की तरफ में देखिए, खड़े होने से आपको स्वेलिंग आती है। ऐसा सभी की खड़ो 10 इंसान को खड़ा कर दो, क्या 10 वो इंसान को स्वेलिंग आएगी? ऐसा नहीं है ना, किसी को आएगी, किसी को नहीं आएगी। तो ये जो डायग्नोसिस आप करते हैं ना कि मेरा खड़े होने की वजह से हो गया है, ये गलत है। ये पहली बात तो डायग्नोसिस ही गलत है ना। आप बोलते हैं स्ट्रेस से हो गया, 10 इंसान को सेम सिचुएशन में डाल दो, क्या सभी को स्ट्रेस होगा? नहीं होगा। तो जब आप कहते हैं कि स्ट्रेस से हो गया है, तो आप गलत डायग्नोसिस करते हैं। स्ट्रेस से नहीं हुआ, आपके खड़े होने की क्षमता, आपने तैयार किया क्या अपने बॉडी को कि वो लंबे समय तक खड़ा रहे और उसके बाद में प्रॉब्लम नहीं रहे उसको? क्या आपने तैयार किया? ये हम तैयार ही नहीं कर। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है ना, एजुकेशन सिस्टम की वजह से इतनी गड़बड़ी है। इसमें हम हमारे शरीर को तैयार ही नहीं कर रहे, हमारे माइंड को तैयार नहीं कर रहे। तो ऑलमोस्ट सभी 99% जनता, बल्कि 100% जनता मेंटली सिक है, चाहे वो डायग्नोज है कि चाहे नहीं, मगर किसी न किसी लेवल पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सभी को। तो कहने का मतलब आप डायग्नोसिस ही गलत कर रहे हैं। तो खड़े होने से नहीं होता, आपकी खड़े होने की क्षमता नहीं है, कम है। इसको क्या कहेंगे? उदान। एक वर्ड है जिसे कहते हैं उदान, टू रिमेन स्ट्रेट। अगर ये उदान आपके शरीर में बहुत स्ट्रांग है, तो आप पूरा दिन खड़े रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने उदान तो स्ट्रांग किया नहीं, आपने खड़े होने लग गए, मगर वो स्ट्रांग आपका है नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि इफ यू डायग्नोज प्रॉपरली यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन, इफ यू डोंट डायग्नोज देन देयर इज नो सॉल्यूशन। खड़े होने से हो गया तो कर लो ठीक, अब नहीं होगा वो ठीक, एक जगह प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज करेंगे, आपको सपोर्ट मिल जाएगा, मगर उदाहरण पक्ष आपको स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उदाहरण पक्ष स्ट्रांग करने के लिए क्या करेंगे? थोड़ा बॉडी का मूवमेंट भी करेंगे ना, तो उससे भी होता है, तो भी उससे। लेकिन क्या स्पेसिफिकली कर सकते हैं? क्या स्पेसिफिकली कर सकते हैं? वही कुंभक पूरा का पूरा थेरेपी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हो तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा।
मिल तो रहा ही है, हाँ उतना नहीं मिल रहा, आपके बॉडी को नुकसान कर रही है चीज, मगर मिल तो रहा ही है ना। लेकिन अगर आप सच में सही चीज खाना शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, ये बात है ना, नुकसान नहीं होगा। तो आप उदाहरण पक्ष पे सीधा काम करना शुरू करते हैं अगर, तो आप देखेंगे ये धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। अब बहुत लोगों का क्या, वेरिकोस वेन बहुत ज्यादा आजकल देखने को मिल रहा है। वेरिकोस वेन, वेरिकोस वेन में क्या है कि यूजुअली आपके शरीर में ये उदान शक्ति की वजह से ब्लड का ऊपर की तरफ में फ्लो होता है। उदान शक्ति जो है इसकी वजह से ब्लड का ऊपर की तरफ में फ्लो होता है। अब ये कमजोर हो जाएगी तो नहीं, ऊपर की तरफ फ्लो में तकलीफ आएगी। ऊपर की तरफ फ्लो कहां पे होता है आपका ब्लड, वेन्स में होता है, वापस हार्ट की तरफ में आता है ना। तो वेन्स में ऊपर फ्लो नहीं होगा तो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इसी को वेरिकोस वेन कहते हैं। किसी जगह पे स्वेलिंग आ जाएगी क्योंकि ऊपर की तरफ फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा। उदाहरण पक्ष अगर आप ठीक कर लेंगे, वेरिकोस वेन ठीक हो जाता है। हमारे पास में कई लोग हैं, आते हैं कहते हैं हमारा वेरिकोस वेन इंप्रूव हो गया, ठीक हो गया। तो वो आपको डायग्नोसिस सही होना चाहिए। इस वक्त में डायग्नोसिस होता ही नहीं है इंसान, दे डायग्नोसिस के नाम पे इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन दैट इज बीइंग डन। अगर ऑब्जर्वेशन ही डायग्नोसिस है तो फिर ठीक क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन डायग्नोसिस नहीं है। वो क्यों हुआ उसका पता नहीं, ऑब्जर्वेशन कर रही है कि ये देखो डिस्क बल्ज हो गया, क्यों हुआ उसका पता नहीं है, तो उसी को ठोक पीट के ठीक करने की कोशिश कर। भाई ऑब्जर्व कर लिया, उसको ठोक के ठीक कर दो। अरे बाबा ठोक के ठीक कर भी दोगे तो और नुकसान हो जाएगा। तो वो क्यों हुआ आपको समझना पड़ेगा ना। दैट इज वाई प्राणशक्ति डायग्नोसिस की जरूरत है। वेरिकोस वेन क्यों हुआ, कौन सा पक्ष कमजोर है, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये साइंस है, आप जिसे साइंस कह रहे हैं उसमें साइंस जैसी कोई चीज नहीं है ना। ये जो ऑब्जर्वेशन करके ना इलाज नहीं होता, साइंस से इलाज होता है। इलाज नहीं है तो ऑब्जर्वेशन है, उसमें साइंस नहीं है कुछ। वो बच्चा भी ऑब्जर्व करेगा, लाल पत्थर को देख के आपने लाल पत्थर बोल दिया तो क्या बड़ा काम कर दिया आपने, उसका नाम भी रख देंगे कुछ ABCDF। ग्रीको रोमन, ग्रीको रोमन टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना इंटेलिजेंट होना नहीं है। देवनागरी का भी इस्तेमाल करके आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, मगर हमें लगता है कि कोई अंग्रेजी वर्ड बोला तो बहुत इंटेलिजेंट बात बोल दी। अरे ठीक तो होता ही नहीं है, पूछो ना ठीक होता है क्या। नहीं जी ठीक तो नहीं होता, हमने तो नाम रखा हुआ है बस, लाल पत्थर का नाम रख दिया, पीले पत्थर का नाम रख दिया कोई अंग्रेज। तो ये जो डायग्नोसिस आपका हो रहा है ना, इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। हाशीमोतो किसी बंदे का नाम रख दिया, हाशीमोतो थायराइड, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ठीक होता है, नहीं ठीक तो नहीं होता साहब। ग्रेव सिंड्रोम ठीक होता है, नहीं ठीक नहीं होता जी। मतलब कर क्या रहे हो आप, ये अंग्रेजों की फितरत है। कहीं जाते हैं वहां झंडा लगा देते हैं, ये हमारा देश है, ये हमने ढूंढ लिया पहले जी। इंडिया को भी किसी ने ढूंढा है, बताओ तो। इतना बेवकूफ कोई हो सकता है क्या, उनसे हजारों साल पहले हमारी संस्कृति है, हमने ढूंढा है सारे को। वो कहते नहीं कि इंडिया को ढूंढने आया था और इसने ढूंढ दिया जी, वास्को डिगामा ने ढूंढ लिया जी, शिमला को इस बंदे ने ढूंढ दिया जी। अंग्रेजों के चक्कर में पड़ गया, इतने बेवकूफ बातें करने लग गए कि आप सोच भी नहीं रहे कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ग्रीको रोमन शब्दावली को इस्तेमाल करके कोई इंटेलिजेंट नहीं बना, कोई ट्रीटमेंट नहीं आया आज तक, ठीक है। आपको डायग्नोसिस एक नए नजरिए से देखना पड़ेगा। आपका शरीर कैसे काम करता है यह आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। सभी नहीं समझ सकते, मगर कम से कम मैं यही बात कह रहा हूं, अगर आप हेल्थ को बढ़ाने के लिए पैसा डालेंगे ना अपना, तो इस पे काम होगा। अभी काम कहां होता है, केमिकल बनाने में काम होता है, हथियार बनाने में काम होता है, क्योंकि आप पैसा ही नहीं डालते हो। अमेरिका बहादुर को पैसा दे रहे हो, जब आप गोली खाते हो तो पैसा कहां जाता है, अमेरिका बिग फार्मा को पैसा जाता है। वो हथियार बनाते हैं और चौधरी बना करते हैं दुनिया में। बेवकूफ बंदे रूल करते हैं दुनिया को क्योंकि आप पैसा दे रहे हो उनको। तो आप ठीक कैसे होंगे ये तो बताइए, आपकी लाइफ कैसे ठीक होगी। तो डायग्नोसिस को बहुत अलग नजरिए से, अभी बहुत रिसर्च चाहिए इन सब में, है ना, बहुत रिसर्च चाहिए, बहुत काम करना है। कुंभक पे 100 साल भी काम किया जाए ना तो भी बहुत कम है। तो हमें यहां पे काम करने की जरूरत है। नए नए एवेन्यूज खोलने हैं ट्रीटमेंट के, नए नए एवेन्यूज खोलने हैं थेरेपी के,
नए नए एवेन्यूज खोलने हैं बीमारियों को ठीक करने के, हेल्थ बढ़ाने के। तो उदान को अगर आप ठीक करेंगे तो आप देखेंगे आपका अपवर्ड फ्लो ठीक हो जाएगा। आपका अपराइट पोस्चर जो है ना, वो उदान की शक्ति की वजह से होता है। लोगों की स्पाइन में टेढ़ापना आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि उदान की शक्ति कमजोर हो रही है ना। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कमजोर हुआ, जैसे मैंने बताया पहले, व्यान शक्ति। अब मैं बता रहा हूं उदान शक्ति, उठने की, सीधा खड़े होने की शक्ति, ये कमजोर हो रही है लोगों की। और बहुत कारण है इसके ऊपर मैं बात करना चाहूं तो हफ्ता भर बात करूं आपसे, और बता सकता हूं कि हवाई जहाज जो उड़ रहे हैं ना, उसकी वजह से आपकी उदान शक्ति कमजोर हो रही है। अगर आप अरेबियन सी में थोड़ा जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्या ड्रैगन फ्लाई, है ना, हम लोग तो हेलीकॉप्टर कहते थे बचपन में, उनको पकड़ा करते थे। ड्रैगन फ्लाई दिखते हैं, आजकल दिखते ही नहीं। ड्रैगन फ्लाई ना वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका जाते हैं ब्रीडिंग के लिए। सोचो, इतना छोटा सा, पूरा इतना बड़ा, हजारों किलोमीटर का समुद्र पार करता है। ये हमेशा होता था। आजकल क्या हो रहा है, वो सी बेड पे मरे हुए मिलते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन भूल रहे हैं। उनका डायरेक्शन का सेंस खत्म हो रहा है। कौन खत्म कर रहा है? ये जो हवा में जब भी आप हवाई जहाज उड़ाते हो ना, तो उससे उड़ान शक्ति कमजोर हो जाती है। आपकी नहीं होती, उड़ान की वजह से आपको डायरेक्शन का पता चलता है। जानवरों की भी हो जाती है। माइग्रेटरी बर्ड्स कहां जा रहे हैं? देखने को मिल रहे हैं माइग्रेटरी बर्ड्स आपको? नहीं मिल रहे। मैंने कहा आपको, साइंस का टैग लगा हुआ है, देयर इज नो साइंस इन साइंस। साइंस ही नहीं है कहीं। ये वेस्टर्नर लोग कुछ नहीं कर सकते, हर चीज को ये रिलीजन बना देंगे। साइंस को साइंस नहीं रहने देंगे। हमसे चुरा के ले गए साइंस, मगर चुराई हुआ माल हजम नहीं होता साहब, कहीं तो निकलेगा। आपको समझना पड़ेगा। आप जब तक आंखें नहीं खोलेंगे, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। आपका वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगे के जीवन के लिए खूब 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 शुभकामनाएं। स्वामी जी नमस्कार, मेरा प्रश्न तो रह ही गया। आप उसमें डाल दीजिए, आपको बताया मुझे दूसरे सेशन में जाना है, आप डाल दीजिए। मैंने चैट में भी बहुत पहले डाला था और हाथ भी खड़ा किया, लेकिन मेरा प्रश्न नहीं लिया गया। वो टाइम का हमने आपको पहले ही बता दिया था। आपने कहाँ डाला? क्या प्रश्न? आप बोल दीजिए, बता दीजिए। हाँ, मेरे जो लेफ्ट हिप जॉइंट है उसमें और लेफ्ट लेग में पेन रहता है, और मुझे बर्साइटस और मसल टियर बताया गया है, और स्पाइन में कंप्रेशन। मैंने इसका जवाब आपको दे दिया है। मैंने इसका जवाब दे दिया है, आपने सुना नहीं शायद। मैंने बताया कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इसमें एक तो इसका अलाइनमेंट गड़बड़ है, आपके बॉडी का अलाइनमेंट करना पड़ेगा। अलाइनमेंट करने के लिए हम सिखाते हैं चीजें, हठ विन्यास जो मैंने बताया, अलाइनमेंट करवाते हैं। दूसरी चीज है, स्केलेटल स्ट्रेंथ आपका कमजोर है, जॉइंट का स्ट्रेंथ कमजोर है, उसके लिए व्यान पक्ष मजबूत करना पड़ेगा। उदान पक्ष के बारे में अभी बताया, वो बढ़ाना पड़ेगा। ये सारे जवाब मैं दे चुका हूं। और दूसरी बात, जवाब मैं दे भी दूं तो आपको कोई फायदा नहीं होने का, जब तक आप सिर्फ जवाब काम नहीं तो करने से ही फायदा, तो करने से ही हाँ, होगा। करने से ही फायदा होगा। हाँ। तो और अगर आप क्लास हाँ, का टाइम सिर्फ यही 7 बजे का है या कोई और भी टाइम है? आप नंबर छोड़ दीजिए, आपको कोई मेंटर आपसे बात करके सारा डिटेल में दोबारा से बताएंगे। इवन आपकी प्रॉब्लम को भी ले लेंगे। आप अपना नंबर छोड़ जाइए इसमें, है ना, चैट बॉक्स में अपना नंबर। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you so much, participants, for joining us this evening. Goodbye and take care. You can write your questions, the ones which have been left out due to shortage of time. You can write in the webinar group and we will definitely get back to you with the answer from Swamiji. Thank you. Good night.